benefiting themselves, their families, and their home countries. The numbers are in. When women entrepreneurs are supported, economies grow. So, how did you like this small motivational clip? I want to hear from you all. What did you learn from this clip? We're Anyone? the hottest country anywhere in the world, and there is no other country even close. All these other countries are begging us to be involved when they want something. Yes. Yes. Please, I want to engage you all also. I just wanted to understand, have you gone through this clip? Understood what exactly it is? What? Because this session will be based only on your valuable answers, because then only if I'll take you across the entire presentation of the session 1 and session 2, you will come to know how women are contributing towards the economy and the country. And I'll teach you certain steps to entrepreneurship through not only marketing branding, but I'll get you across the value chain, that how the entire system works, from your small business and niche focus area to a large enterprise where women would be leading the boards of the large companies. So I just want some of you to tell me what exactly this represents. It represents the importance of women, in the entrepreneurship economy. As Anissa, I think there was they contribute almost 12% of the. But that was for the US. You think about the world, you think about your J&K state. See now, we can see women empowerment sector, and you can see the top share. Yes. Majority of obviously going to the scenario is going to change now. It is always empowering the women. Yes. That's why we are sitting here. Absolutely right. But the core competencies needs to be understood with this particular small clip, what it is. No, It's not, not they are exactly more that. creative than men. Not exactly That's that. a whole debatable talk. Absolutely. See, that was the point. See, you understand the role of. Absolutely, you're right. I would really appreciate the answer. I want everybody to clap for her. If you will see the video in the last stage, you will see a woman, doing multiple work, multiple tasks, carrying their family also one side, carrying their roles and responsibility, again a breadwinner for the house. Right. So you see, previously from years on years, if you see how our societies have changed, women's roles and responsibilities have equally been changed, and the society has leveraged. They have leveraged to different of the culture impacts that were earlier with the women, which now the hurdles are not that. But yes, there are. That I'll come to the next slide. What are the hurdles practically when you go for their business? Right. But yes, if I say, and I'm not wrong, I'm very much right, because I have seen from my house, I see my mother, my sister, and I fortunately I don't have a daughter, but I would expect mighty that somewhere I should also have a daughter, because the lady has that charismatic power that she can handle anything in this world which men cannot. Right. And you buy this word because I have seen that in my life, personal experience. So now I'll begin with empowering women with SHGs. So my presentation will, it will carry insight on empowering the women, exploring the marketing tools, what women can do, specifically even not about women, but men also can do and take that approach, leveraging government scheme, and setting up the KPIs and the playbooks. So setting up the KPI and the playbook would be the major role that I'll teach you. I'll make you understand about the value chain, how it works, what value proportions are there in the entire value chain cycle, and how playbooks can, the real-time examples, how they work, and how this, when we go in the market, the tools we apply and how they work, and how do you build your across the enterprise. That will be here in this presentation. I'll come to the next slide. Again, this is also very interactive. I want you all to see this slide and tell me, what do you think in this is bigger? What do you see in this the bigger? इन दोनों में क्या बड़ा है? मतलब कौन सी चीज बड़ी दिख रही है आपको?
हम्म नहीं, मार्केटिंग है नहीं। आप इस स्लाइड में बताइए, इन दोनों में आप, इन दोनों स्लाइड्स में आप देख रहे हैं कि इसमें कंटेंट है, वो कंटेंट में आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है? Sir, where there are challenges, opportunity is always there. So I would rate opportunity at the dominance. See, there is an cited example and proven thesis on human mindset, their acumen, and it is always said what you read largely is the opportunity always. But when you see the heading which is very small and the content is very large, that becomes your priority to execute the things. So that is a challenge what you see the larger picture, because once you start your business, you will not evaluate anything, you will evaluate the risk involved, the challenges involved. When you will start with some product launch or product activity, you will see what would be my target audience, who will take my product, who will use my product. So you will see कि अरे यार ये तो बहुत छोटा सा निश मार्केट साइज है मेरे लिए, इतने लोग कहाँ से मैं लेके आऊँगा. So this is challenge for you. So you will discuss challenge rather the opportunity. The opportunity would be on the back side कि हाँ, it's a big audience, it's a big market, well I'll go. So this session will matter a lot when we seek opportunity and challenges both. So when you enter the market, technically when you enter the market with your product launches in the market, initially you will not get response from the consumer. You think my product is bad. No, it's not your product. Your idea is bad to promote. So you will have to work, you have to re-engineer your product, your marketing strategy. Therein you will evaluate ki, okay, this were the challenges I was looking, the risk aversion methods, mitigation methods, and this is the opportunity where it lies. I have to focus and contribute to the exact audience what I'm looking, and I'll penetrate that market. So I'll go with the strategic foundations. How value proposition chain works as a strategic tool. When you go for any kind of product launch, when you start building your marketing strategies, when you start exploring the markets at the grassroots. But before that, you need to understand what is value proposition chain. So I just wanted to know from your side, how many people are engaged with the grassroots activities when they go for promoting and branding? Any of you? Anyone, please? Let's make this session interactive. I want to see the best brains from this cost. Yes, sir. So I am associated with one of the transportation and logistics sector, where we really deal on ground with the drivers, with the farmers, with the different fruit mandis, with the vendors, with the suppliers, with the importers and exporters. Yeah, so we can say we are connected on ground with them, where we see the real problem with them, because we somehow have to interfere with the loading and unloading purpose also, where the actual worker comes, the labor work comes there. नहीं, मैं आपको, आप जो मुझे बताते हैं वो एक्सपेक्ट्स हो गया, यानी Yeah. आपने स्पेसिफिकेशन बताई कि मेरे इस प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ, Mhm. बट उस प्रोसेस के पीछे की वैल्यू चेन छुपा है. हम्म. वो वैल्यू चेन क्या है? जब आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं या अपने कोई प्रोडक्ट को अब कंट्रीब्यूट करते हैं या बाहर लाते हैं, बनाते हैं उस प्रोडक्ट को, तो आपको पता है कि मुझे एक मीडियम है, एक ट्रेडिशनल मीडियम है, उसी से जाना है, Mhm. ठीक है. बट उसके पीछे एक प्रोपोर्शनेट वैल्यू होती है, एक प्रोपोजिशन होता है, एक चेन होता है, पूरा साइकिल होता है. वो साइकिल कैसे बिल्ड करता है अपने प्रोडक्ट को, वो हम अपनी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग से डिफाइन करते हैं. तो मार्केटिंग ब्रांडिंग के पीछे जो हमारी वैल्यू प्रोपोर्शन चेंज होती है प्रोडक्ट, क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, बट जब उसकी स्केलेबिलिटी नहीं है, उसकी विजिबिलिटी नहीं है, उसकी ब्रांडिंग नहीं है, प्रमोशन नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं चलेगा. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ. मैं रिसेंटली एक एनकाउंटर किया, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज अगेन इनटू एग्री टेक्नोलॉजी, कश्मीर से ही है. तो उसने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया. उसने बताया कि भाई यहाँ का जो शहद है वो सबसे बेस्ट है, और उसकी हनी बीज है वो पहाड़ी है, you'll get the best thing, वो आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देता है, बट मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. तो आपने जितना कैपिटल अपना लगाया है उसके ऊपर, वो कैपिटल तो धुल गया. तो उसने मेरे पास आया, मुझे बताया कि क्या कर सकते हैं. तो मैंने उसका मॉडल स्टडी किया, तब मुझे पता लगा कि आपके एग्रीगेटर्स पे जाना ही नहीं है. आपको, यू डोंट नीड टू गो विद एग्रीगेटर्स, फोकस ऑन द निश मार्केट, फोकस ऑन द बिग थॉट के निश मार्केट में मैं कैसे अपने लार्ज और वैल्यूएबल कस्टमर्स को ले सकता हूँ. तो वो प्रोपोर्शन और वैल्यू चेन वहां पे क्रिएट की गई है. तो दैट इज व्हाट प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैं आपको समझाऊंगा कि पहले ये वैल्यू चेन क्यों इंपॉर्टेंट है. आपको जब आप समझेंगे, तब आप अपने बिजनेस में जब उसको अप्लाई करेंगे या कहीं पे आप एप्लीकेट करेंगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि मेरा एक्चुअल में बिजनेस कहाँ पे गैप्स है प्रोपोर्शन के अंदर या वैल्यू चेन में,
कहाँ पे मुझे प्रोडक्ट में इनोवेशन या वेराइटी की ज़रूरत है और कहाँ पे मुझे बेस्ट ब्रांडिंग और रीच की ज़रूरत है। बट उसके लिए जाना हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी वैल्यू प्रपोर्शन चेन क्या है इस प्रोडक्ट की। तो आई विल स्टार्ट विद स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इसलिए क्योंकि हम जब अपना प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रहेगी। क्वालिटी के अलावा उसके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगे, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो हमारा ज़्यादातर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चला जाता है प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। हम भूल जाते हैं कि उसकी मार्केट पीछे क्या पेनिट्रेट करना है, कैसे करना है, उसकी एक्टिविटी क्या है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बहुत ज़रूरी रहती है। तो एक एंटरप्रेन्योर है उसके लिए हमेशा अपने प्रोडक्ट को स्ट्रेटेजिकली कहाँ लॉन्च करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेडिशनली तो हम जानते हैं प्रोसेस कैसे, एग्रीगेटर पास जाना है, मीडिएटर पास जाना है, प्रोडक्ट देना है, डिस्प्ले में डालेगा, बिका बिका नहीं बिका नहीं बिका। बट उसके अलावा ऑप्शन क्या, व्हाट इज द प्लान बी। सो नाउ व्हेन वी स्टार्ट ऑन प्लान बी वर्किंग, तो वहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग शुरू होती है। तो ब्रांड बिल्डिंग शुरू होती है तो हमें जब ब्रांड बिल्डिंग के लिए हमें एक पॉइंट पे जाना पड़ता है, दैट इज योर डिविएशन पॉइंट। एक स्टैंडर्ड डिविएशन हम क्रिएट करते हैं कि अपना अच्छा मेरे बिजनेस में अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, अब एग्रीगेटर से मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक नहीं रहा है, अब मुझे स्केल करना है, तो मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है। तो देन वी स्टार्ट आवर ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ कि मुझे अब प्रमोशंस कैसे करनी है, मार्केटिंग कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, सोशल मीडिया पे जाना है या मुझे मेन मीडिया में जाना है, या मुझे एटीएल एक्टिविटीज़ करनी है या बीटीएल एक्टिविटीज़ करनी है। एटीएल और बीटीएल एक्टिविटीज़ मार्केटिंग फंडा है। मैं आपको लेटर ऑन नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा उसको कि वो क्या होता है, कैसे चलता है, उसमें कौन से मीडियम्स होते हैं, मोड्स होते हैं, जिससे आपकी ब्रांडिंग और आपकी प्रमोशन स्केल अप होती है। थर्ड आता है कैटेगरी मार्केट एक्सेस। आप अपने मार्केट को कैसे एक्सेस करते हो। अब मार्केट को एक्सेस करना इतना ईजी नहीं है, इट्स वेरी टफ। तो हम क्या करते हैं कि आजकल पिछले 10 सालों के अंदर हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, सोशल मीडिया इतना अच्छा हो गया है कि हमें वैसे ही अपना फुटफॉल्स मिल जाता है, कस्टमर का मतलब कस्टमर का बेस मिल जाता है। उसके साथ एक एडेड एडवांटेज हो गया एआई। एआई के काफ़ी सारे एनालिटिक्स हैं जो हमें मिल जाते हैं फ्री में। आप बैठिए गूगल कीजिए, आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स मिल जाएगी। मैं आपको वो भी नेक्स्ट स्लाइड्स में लेके जाऊंगा कैसे डिटेलिंग के अंदर वो काम करती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जैसे आज हम बैठे हैं, कॉस्ट है, एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, लिवरेज दे रहा है। यस, उसके बाद काफ़ी सारी स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट की प्रमोशनल स्कीम्स हैं। उसके बाद काफ़ी सारी एमएसएमई की स्कीम्स हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर पे या ग्रास रूट इनोवेशन या एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है। सेम में प्रधानमंत्री कुशल योजना वगैरह स्कीम्स है, काफ़ी सारी स्कीम्स है जो कवर करती है इस सब चीज़ों को। एंड थर्ड इज प्रूफ पॉइंट्स। प्रूफ पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बेस पे आपको अपने प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसको लोग, आपके कस्टमर्स हैं, उसको रेट करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। उसके बाद रिपीट ऑर्डर्स होता है। तो ये वैल्यू प्रपोर्शन चेन हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। बट उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम कौन से मार्केट में काम करते हैं, B2B में है या B2C में है। क्या वो हमारा लार्ज मार्केट है या हमारा निश मार्केट है। तो हम जिस साइकिल में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वो हमेशा फोकस रखता है निश के ऊपर। तो हमारा सेगमेंट हो गया निश। निश के लिए हम कैसे काम करेंगे, तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे रियल एग्जांपल्स अपनी प्रेजेंटेशन में नीचे लिए हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे एक स्मॉल सा सेटअप जो है और एक कलेक्टिव एजेंसीज हैं या कलेक्टिव कोलैबोरेटर्स हैं, वो कैसे एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गए, जस्ट बिकॉज कि उनके पास सेम आइडिया था, उनके पास सेम विजन था, उनके पास सेम मैट्रिक्स था। तो शुरू करते हैं B2B पे। B2B क्या होता है कि आपको उसकी कोई ब्रांडिंग एक्टिविटी कहीं ज़्यादा नहीं दिखेगी, वो ब्रांड नहीं, प्रमोशंस में नहीं जाएगा, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेगा, उसकी विजिबिलिटी कम होगी। बट उसका फोकस एरिया होगा उसका प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ। उसको पता है कि मेरे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन सबसे अच्छा है और मैं जानता हूँ उसमें मैं लीड करता हूँ, उसी वजह से उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन होती है जिसमें वो प्राइसिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करता है। बट उसके कस्टमर्स बहुत कम होते हैं, वो 10-12 कस्टमर से सेटिस्फाइड होता है और उसका सारा टर्नओवर जो है वो बस 12 कस्टमर्स आ गए साल के, मुझे मेरा रेवेन्यू होगा, माय प्रॉफिटेबिलिटी, माय पीएल स्टेटमेंट स्टेट दैट आई एम इन प्रॉफिट्स, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, आई डोंट वांट टू एक्सपैंड। बट जब एक प्रमोटर जो है या एंटरप्रेन्योर है, जब वो सोचता है कि B2B में मुझे स्केल अप करना है तो क्या करना है, तो उसके लिए ब्रांडिंग एक्टिविटीज क्या रहेगी, तो जनरली वो क्या करेगा, अपनी जो मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए वो 3 से 4 छोटे प्लेटफॉर्म लेगा जिसमें उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम लो कॉस्ट पे हो।
और फिर वो प्रमोशंस करेगा, जिससे उसको लो कॉस्ट के ऊपर उसकी ब्रांडिंग की वैल्यूएशन मिल जाती है और उसका प्रॉफिटेबिलिटी या पीएल स्टेटमेंट उसका वो डिफाइन कर लेता है। वेरएज हम B2C में आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं लार्ज कमोडिटी सेगमेंट्स है हमारे, भले हम निश मार्केट को फोकस करते हैं, जैसे पैडी है, ठीक है, एक स्मॉल एग्जांपल में ले रहा हूँ, तो वो निश मार्केट का वो है, बट उसका जो एंड यूजर है वो बहुत सारा है, इट्स इनटू मास। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कर प्रमोशन करना पड़ता है, दिखना पड़ता है मार्केट के अंदर, नहीं मैं हूँ, आई एम देयर, दिस प्रोडक्ट इज देयर, दिस प्रोडक्ट नो इट्स बीन यूज बाय मल्टीपल कस्टमर। तो उसके लिए क्या करोगे आप, हाई विजिबिलिटी के मीड्स मोड्स और मीन्स यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग करेंगे आप, कोलाज लगा देंगे कहीं ना कहीं पे स्टैंड के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर, या कोई एक्टिविटी कर देंगे, मार्केटिंग एंड प्रमोशन की एक्टिविटीज़, या कोई इवेंट्स में आप चले जाएंगे जहाँ पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, या आप कोई ट्रेड शोज में, ट्रेड फेयर में जाते हैं, तो वो सब विजिबिलिटी का हो गया। वैल्यू प्रोपोर्शन चेन जो है उसको समझने के लिए उसके 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स। उसमें है आइडेंटिफाई योर कस्टमर सेगमेंट, आइदर दैट इज रिलेटेड टू B2B और B2C, द नंबर 1। नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स। तो नीड्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो नीड्स क्या है, क्या हम कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, या जो प्रॉब्लम हमें आती है हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमारे बीच में ये दोनों के बीच में जो गैप होती है ना, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड निकालते हैं। उस मेथड निकलने के बाद हमको पता लगता है कि यार ये तो मेरा परचेज प्राइस को कम कर गया, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में आ गए, आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट में आ गया। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग नीड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द गैप्स इन द मार्केट, द गैप्स इन योर प्रोडक्ट। उसके बाद आता है, जब आप गैप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको पता लगता है कि मेरे पास ऐसी कौन सी USP है, या मैं कैसे उसका एक वैल्यू एडिशन सेटअप रेडी कर सकता हूँ, जिससे मेरे प्रोडक्ट और मेरे डिज़ाइन जो है या मेरे सर्विसेज है, जो स्पेसिफिक पेन एरियाज है या पेन पॉइंट्स है, उसको दूर कर सके। देन इज डिलीवरी द प्रॉमिस, यू हैव टू डिलीवर योर प्रॉमिस इफ यू आर इन द मार्केट। इंश्योर द क्वालिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपका प्रमोशन मैसेज कन्वे होना चाहिए रेगुलरली उन ऑडियंस तक जो आपके प्रोडक्ट को ले रहे हैं, ताकि आपको रिपीट ऑर्डर्स मिले, जो मैंने अर्लियर स्लाइड में आपको बताया। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कुछ जो मैंने अभी बताया आपको, मैं कॉमन सक्सेस जो मेजर्स लेते हैं, मतलब इट्स ए वेरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सेस, बट इनका जो ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ है, इनकी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है प्रोडक्ट को लेके, वो बहुत ही कॉमन है। जितने भी आप SHGs में देखेंगे, जितने भी FPOs में देखेंगे जो निश मार्केट को फोकस करते हैं, उन सब का एरिया ऑफ फोकस सेम रहता है, उनका जो प्रोडक्ट साइकिल रहता है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल रहता है, वो सब सेम ही रहता है। आप एक ही बंदे से बीच में मीडिएटर को रखेंगे, उसको अपना प्रोडक्ट देंगे, वो आपका खरीदेगा, मल्टीपल मास में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डीलरशिप नेटवर्क बढ़ाएगा। तो आपके पास आपकी प्रॉफिट बुकिंग जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, टू अर्न नथिंग इन दैट पर्टिकुलर साइकिल। So why to make the middleman the richer? That is what, that is your plan B that has to come। और ये जितने भी barriers है ना, इन पर्टिकुलर 3 एग्जांपल्स हैं, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या उन्होंने किया है, डिलीवरी दिया है, उन्होंने barriers को ब्रेक कर दिया, हटा दिया। तो नाउ आज उनका प्रॉफिट, उनका जो बुक साइज है, यानी उनकी बैलेंस शीट है, या उनका P&L है, इट इज लार्ज। वी कैन नॉट इवन अंडरमाइन कि वो कैसे उन्होंने यहाँ तक पहुँच गए। But I'll just brief you one of the small examples of Piperia Women Dairy that's located in Gujarat, from where I come। उनका अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे ना, तो कलेक्टिवली बहुत छोटा सा स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन था, करीबन 10-12 औरतें थी, बट वो सोसाइटी से डिस्कार्डेड थी। तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे लिविंग बीइंग के लिए हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू। तो देन दे ऑल टुगेदर मेट, they started with one of the scheme launched by the state government to have cattle breeding and cattle so they started with that, or they started with milk products। तो initially they start taking out the milk, और डेयरी इंडस्ट्रीज थी, अमूल उन सबको वहाँ पे दिया करते थे। बट उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी इन लोगों ने, सी दे आर नॉट एडुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे नहीं थी वो औरतें, बट उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसमें तो हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग इट, सो हाउ डू वी ब्रेक दिस बैरियर। तो कलेक्टिवली उन्होंने क्या किया, साथों साथ मिल्क निकालने के साथ साथ उन्होंने लोकल मेड प्रोडक्ट्स जैसे पनीर है, घी है, वो सब बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा उन्होंने टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया, कुछ इन्वेस्टमेंट लोगों ने दिए उनको।
उसके बाद उनको पता लगा कि यार ये तो प्रोडक्ट लाइन हमारी बढ़ रही है, उसको मैसेज देना है, तो देन दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप द कैपेसिटी। तो वो 10 वुमेन थी, वो 15 हुई, 15 से 25 हुई, 25 से 100 हुई, 100 से 200 हुई, 200 से आज वो 800 है। तो 800 औरतें मिलके इस डेयरी को इस तरह से चलाती है कि अब अमूल को दूध नहीं देती, वो अपना खुद का ब्रांड बेचती है, वो 120 रुपए से लेके 180 रुपए लीटर दूध बेचती है। अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे उसका प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट देखेंगे, वी कॉल इट ऑर्गेनिक मिल्क फ्रॉम द A2 cows. But I don't want to I don't want to defend that product. I don't want to deny that statement also. Okay, those breeds are not those cows are not Organic in themselves. organic cows. Mhm. They are multi breeds, but still their product work. What is the common thing in that? That is their storyline. They didn't storytelling about the product. उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, उन्होंने बोला क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो चीज़ नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि हम अपलिफ्टेड वुमेन है, हमारा ब्रांड ये है, हमने हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स किए, कलेक्टिव एफर्ट्स लगाए, तो ये प्रोडक्ट बिकना चाहिए। तो वो एक मैसेज जो सोसाइटी में गया, लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, उनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, और आज दे आर स्केलिंग। उसी तरह से एक एग्जांपल है इंदुबेन खाखरा का। इंदुबेन खाखरा वाला, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज। शी वाज अ सिंगल लेडी। उसकी बात कही है इंदुबेन खाखरा। तो शी वाज अ सिंगल लेडी, हर हस्बैंड डाइड इन अ वेरी यंग एज। You are getting the visibility there? Yes, yes, yes. हाँ. So her husband died. She was like, what should I do now? I have a small child. I cannot do anything. I'm not literate. So she got an idea. Okay, why not? I'm good at making that hard rotis. We call it खाखरा in Gujarati. पापड़ टाइप होता है वो। हाँ, नहीं लिज्जत पापड़ नहीं, वो खाखरा टाइप होता है, मतलब रोटी होती है, वो सूखी हुई रोटी होती है, उसको बस उसको अलग से हम लोग, हाँ, रेडी टू ईट वाला रहता है वो। तो हम लोगों ने, मतलब उन लोगों ने आइडिया निकाला कि ठीक है करते हैं। तो उनकी एक नेबर थी, उन्होंने बोला मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, चलो मैं आपको मटेरियल ला देती हूँ, आप करते रहो। और उन्होंने बनाना शुरू किया, लोकली आसपास के घर में बेचना शुरू किया। स्टार्टिंग में लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, प्रोडक्ट इज गुड, खाते हैं। तो उनमें से फिर एक वहाँ पे सोसाइटी है सेवा करके, जो वुमेन अपलिफ्टमेंट में काम करती है, तो उनसे उन्होंने लोन बोरो किया एट वेरी मिनिमम इंटरेस्ट रेट, और एक मशीन ली छोटी सी, और मशीन से उन्होंने खाखरा बनाना शुरू कर दिया। तो वो सिंगल लेडी आज की डेट में कम से कम 1000 करोड़ का बिजनेस कर रही है फ्रॉम खाखराज। उसके बाद उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए, पिकल्स आ गए, स्पाइसेस आ गया, बेकरी आइटम्स आ गई, ऑल ड्राई आइटम्स रेडी टू ईट। बट नाउ शी इज 1000 करोड़। तो उनको ये लिवरेज किसने दी, किसने आइडिया दिया, कैसे उन्होंने ब्रांड को प्रमोट किया? हमें सोचना चाहिए कैसे वो कोलाज हो गया इतना बड़ा, वो सिस्टम, वो मिडल मैन जो थे बीच में, वो कहाँ चले गए, वो ब्रांडिंग एक्टिविटीज कैसे की उन्होंने। तो उसमें भी कॉमन चीज निकली, लोगों ने सोचा कि क्या है, वो स्टोरी टेलिंग था। वही चीज, आई एम ए डिप्राइव्ड वुमन, आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड। लोगों ने उसको इमोशंस में आके डील किया, और वो प्रोडक्ट आज सक्सेस है, नो डाउट। उसकी उन्होंने हमेशा अपनी क्वालिटी, हाइजीन, वो सब मेंटेन किया है। तो आज की डेट में वो प्रोडक्ट इसलिए भी चल रहा है क्योंकि वो सिर्फ इमोशंस नहीं है, बट उसकी क्वालिटी भी है, that woman had ensured. Third is a small SHG, food collectives. It's a very small group, around 20-25 people, both men and women. They are working very hard to promote, a traditional product over there. So I'll just tell you how it is work. In Gujarati, in Gujarat, there were in early days, shortages of, wheat and commodity products. तो लोग गरीब भी थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे काफ़ी सारा ग्रेन्स। तो वो लोग क्या करते थे, रोटी को रख के सुखा के काफ़ी दिन तक रखते थे, प्रिजर्व करते थे। उसके बाद वो नमक, गुड़ या पिकल से वो खाना अपना खा लेते थे। तो उसके बाद उन लोग, ये जो चीज़ है, लोगों को याद आई कि ये हम कर सकते हैं, तो कैसे करें? तो उन 4-5 जनों ने मिलके ये चीज़ स्टार्ट करी, एक ग्रुप बनाया, और उन्होंने ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री स्टार्ट की। और धीरे धीरे करके वो आज इंडस्ट्री जो है, अगेन इट इज स्केल, जो कि 15-20 लोग ही चला रहे हैं उसको, उससे ज़्यादा वो स्केल नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास भी कंस्ट्रेंट है, कैपेक्स का भी और ओपेक्स का भी, दैट मीन्स मनी, दे डोंट हैव मनी, बट दे हैव अ वेरी गुड स्टोरी टेलिंग। उनके आप इंस्टा अकाउंट पे जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उनके प्रोडक्ट को फ्री में प्रमोट कर रहे हैं। सो हाउ डिड दे रीच देयर?
वो स्टोरी टेलिंग आई कहाँ से? अगेन सोशल मीडिया। सो वो जो कॉमन थ्रेड्स हैं इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे तो वो शुरू होता है कहाँ से? इमोशन से। दे हैव बिल्ड द इमोशंस। तो हमारा जो एसएचजी है या एफपीओ है वो कलेक्टिवली निश है, बट वो एक इमोशन है जिसकी वजह से हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी चलती है। तो उसको अगर हमें प्रमोट करना है, स्टेबलाइज करना है, बड़ा बनाना है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, वी हैव टू डील विद इमोशंस एंड दैट इज द राइट मार्केटिंग एडवांटेज वी शुड कैरी विद। आई होप इट इज क्लियर विद यू। एनी क्वेश्चंस? यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस इज गोइंग ऑन? तो अगर कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ छूट गया मेरे से तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, तो मैं आपको इंटरैक्ट, वी कैन इंटरैक्ट ऑल्सो। अब उसके बाद जब हमने कॉमन थ्रेड्स समझ लिए तो एक चीज आई कि अब ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे चलेगी, हाउ इट विल वर्क। बताइए। कॉमन चीजें तो हमने सब में देख ली, हम बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में है, हमको पता है। Focus, niche, or we can say transformation or clarity. Yeah, focus on niche we can say is the most common trait I can see among three. नहीं, बट उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अलग होगी ना, वो तो उनका सिर्फ एक मैसेज था। वैल्यू प्रपोर्शन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? कैसे चल गई उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? क्या किया ऐसा जिससे उनका मार्केट इतना एक्सप्लोर हो गया? As you said, they sold their story where they brought in the emotions of the customers. We can say of the emotional connect. नहीं, मैं आपको इसका एक राइट बट एक चीज मिसिंग है इसमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रोल प्ले करता है जब आप फिजिकली मार्केट में इंडल्ज होते हैं। व्हाट इज दैट? मैं आपको एक बहुत सा एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट नो आपने वो देखा है या आप कभी गए हैं उस जगह पे। मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे जिसमें एक लेडी है जो फिश बेचती है यहाँ पे डल साइड में। बहुत फेमस लेडी है। जिगर मास sir? हाँ, जिगर मास. तो आपने देखा होगा उसका, हाँ, द वे शी इज ब्रांडिंग नाउ Yes, sir. हर सेल्फ। व्हाट इज दैट? उसका तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, वो तो स्मॉल स्केल पे एक रिटेल चला रही है। व्हाट इज दैट? मैं अगर उसको पूरा एक मार्केटिंग लैंग्वेज में बोलूं तो एक So इमोशनल कनेक्ट relationship. हो गया, Relationship. एक इमोशनल कनेक्ट हो गया उसके Right. साथ, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, जो जिस तरह से वो सेल करती है हमको प्रोडक्ट, Right. उनको पसंद है। इसलिए हम उसके साथ बॉन्ड हो गया। इसलिए मैं जब भी वहां जाऊंगा तो उसके उसके यहाँ से फिश लेके आऊंगा या उसकी फिश लूंगा। तो दैट इज वैल्यू क्रिएशन, दैट इज द मैसेज, दैट इज द स्टोरी टेलिंग, जो एक लर्निंग स्किल है। बिकॉज क्या होता है, काफ़ी बार काफ़ी सारे फार्मर्स हैं, काफ़ी सारे एसएचजीज हैं, काफ़ी सारे एफपीओज हैं जो उस मैसेज को छूट जाता है उनसे जाना। उनके पास एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, उनके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का स्पेक्स है यानी स्पेसिफिकेशन है, बट स्टिल वो नहीं चल पाता। बिकॉज या चलता भी थोड़े टाइम चलता है बट वो आगे रुक जाता है। बट हमें रुकना नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी, क्वालिटी मेंटेन करनी है, लोगों से एंगेज होना है और एंगेज होना है। तो मैं जैसे आपको बात कर रहा था, इंदुबेन खाखरावाला का रियल सक्सेस सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग नहीं था, उसका ये था कि उसका इमोशनल कनेक्ट था जो कस्टमर्स के साथ। आज भी आप उसकी मेन शॉप पे जाएंगे, वो वहाँ बैठी होगी और बंदों को बात करेगी। बात सिर्फ ये नहीं करेगी कि मेरा ये रेट है या वो रेट है, पैसा लेना है, नहीं नहीं, वो पूछेगी आपके घर में कौन कौन है, कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं। आप देखिए उसका एक एक कस्टमर वो अटेंड करती है। वहाँ पे आप उसके फुटफॉल देखिए, दिन के कम से कम 1 से 10 से 12,000 लोग आते हैं। she has a daily counter of now around 10 to 12 lakhs from one single shop, और वो इतने लोगों को एंटरटेन करती है। So that is what it is required.
आप कितना भी बिजनेस में हैं, आप अपने ग्रास रूट्स को मत छोड़, दैट आर योर कस्टमर्स। चाहे प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, योर कस्टमर्स आर देयर, यू गेट इन टच विद देम। अब टच करने के लिए उनके हमारे पास कौन से मीन्स हैं, कौन से मोड्स हैं। सिर्फ सोशल मीडिया अकेला काम नहीं करता, पर्सनल इंटरेक्शन भी है, काफ़ी फेयर्स हैं जहाँ पे हमारे पास ऑडियंस, नई ऑडियंस भी है और पुरानी ऑडियंस भी लानी है, तो हमें ग्रोथ भी करना है। तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ें काम आती है कि आपको स्केलेबिलिटी पे जाना है, अफोर्डेबिलिटी पे जाना है। सो यू शुड स्केल योर प्रोडक्ट and affordable product. So you should, with all this, you should have a clarity among yourself ke what I want to do. So it is always like effective branding doesn't require large budget, it requires clarity. That's a statement. क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके लिए आप कितना भी पैसा खर्चेंगे। आज मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं एक प्रोडक्ट डाला है, मान लीजिए एक बड़ी एग्जांपल पकड़ते हैं हम लोग अदानी का। दे आर कमिंग अप विद ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनके पास बहुत बड़ा बजट है, बट जरूरी नहीं उस बजट के साथ वो इफेक्टिव ब्रांडिंग काम करेगा। व्हाट इट रिक्वायर्स क्लैरिटी ऑफ द बिजनेस, कि हमें क्या करना है और किसके लिए करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो मैसेज हमें इस हिसाब से वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक टूल बनाना है। जब वो टूल बनेगा, डिफाइन करेंगे आप, तब जाके आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है प्रॉपरली इन्वॉल्व होगी, एंगेज होगी। कॉमन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ सक्सेसफुल वुमेन जो मैं आपको बताया, वो सारी हमने आगे डिस्कस कर लिए। क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन, आइडेंटिफाई बेस्ड ब्रांडिंग, लो कॉस्ट मार्केटिंग, सिंपल कंसिस्टेंट पैकेजिंग, वैल्यू एडिशन, स्टोरी टेलिंग एज ए ब्रांड टूल, कम्युनिटी ट्रस्ट एंड सोशल इम्पैक्ट मैसेज, एंड ग्रेजुअल डिजिटल एडॉप्शन। तो ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें हमने आगे डिस्कस की है कि वो सारे जो कॉमन पिलर्स हैं वो सेम ही है हर जगह। फिर आप चाहे पीटर डकर का उठा लीजिए, उनका रूल थॉट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग को लेके, वो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि उसने वो पहले उस साल मतलब पुराने ज़माने का वो थॉट प्रोसेस था, नए ज़माने का थॉट प्रोसेस अलग है। आज की डेट में डिजिटलाइज हो गया है, योर एआई एनालिटिक्स वर्क। आप क्या प्रीफर करते हैं? अपने फ़ोन के अंदर एक बार मैसेज डाल दीजिए, आपको वो कंटेंट मिलता रहेगा, आप उसी को देखते रहेंगे। तो दैट एनालिटिक्स, उसको भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ले जाऊंगा, कैसे वो मीडियम यूज़ किया जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं। सो व्हाट आर द मीडियम दे हैव यूज्ड फॉर दिस सक्सेस? So one is that digital platforms, storytelling and identity, and offline promotions. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी ऑल नो, फेसबुक है जनरली, व्हाट्सएप है जिसके लिए हम बल्क मैसेजेस करते हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, और ऐसे बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। आई थिंक मेरे से पहले जो अपना सेशन लेके गए हैं यहाँ पे, उनका भी खुद का एक वेबसाइट है जहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स किसान से, marketplace. यस, तो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे अपना प्रोडक्ट को आप रख सकते हैं, पिच कर सकते हैं, यू कैन सेल। दिस अगेन वन टूल, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। So these are the common medium they have used without having an expenditure on with the budget on the marketing. So storytelling I have already identified, कैसे स्टोरी टेलिंग होती है, क्या मैसेज देना रहता है, क्या हमें हाईलाइट करना रहता है अपने मैसेज में, क्या प्रोडक्ट को हाईलाइट करना रहता है या खुद एज ए ब्रांड हाईलाइट होना है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग क्या था, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या थी, और वो इवॉल्व होती है, वो चेंज होती रहती है मार्केट के साथ। आप एक ही स्टोरी टेलिंग को, एक ही प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म तक नहीं खींच सकते, आपको उसको इवॉल्व होना है मार्केट साइज की तरफ। मार्केट जितना आपका बड़ा होगा उसके हिसाब से आपकी स्टोरी टेलिंग चेंज होती रहनी चाहिए, बट उसका फंडामेंटल चेंज रहना चाहिए, और आपके प्रोडक्ट्स के जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम रहने चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड अश्योरेंस। ऑफलाइन प्रमोशंस मैंने आगे डिस्कस किया था, एटीएल और बीटीएल एक्टिविटीज, वो क्या होती है? एनीबडी हु नोज दैट? अबव द लाइन एक्टिविटी एंड बिलो द लाइन एक्टिविटी, कोई बता सकता है? हाँ, अबव द लाइन एक्टिविटी एंड बिलो द लाइन एक्टिविटी, ये मार्केटिंग के बहुत कोर कंसेप्ट्स है, उसके बगैर बिजनेस नहीं चलता है। नहीं, आप में से यहाँ पे कौन बिजनेस करता है बताइए? आप सब बिजनेसमैन, तो आप क्या मार्केटिंग टूल यूज करते हैं? एग्जीबिशंस होते हैं, मेला होते हैं, वहाँ पे exhibit करते हैं। और जो ऑफ बेसिस होते हैं, लाइक कोई ऑफिस होता है, उनके ग्रुप्स में हम ऑलरेडी उनसे
ये सब आता है अबाउट द लाइन एक्टिविटी, सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरा उसमें आ जाता है। बट वो अकेला आपके बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, बिल्कुल आपको सर। ग्रो करना है, आपके पास कैपेसिटी है बिल्ड करनी है, तब आप क्या करोगे? उसके लिए आप कोई मार्केटिंग का बंदा हायर करेंगे जिसकी सैलरी कम से कम 1-1.5 लाख रुपया होगी महीना। सर उसके लिए बनाते ना ये एफपीओज वगैरह जो इंटरमीडिएटर सर ये खत्म करते हैं और अपना ब्रांड नेम वगैरह देते हैं सर, ये लास्ट। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, क्रक्स बताता हूँ इंडस्ट्री का। हम लोग जो वैल्यू चेन की बात करते हैं ना, जी सर। उसमें आपने वो जो सिस्टम डिज़ाइन किया है ना, वो सिस्टम डिज़ाइन उस तरह से किया हुआ है कि जहाँ पे मॉडरेटर को, मीडिएटर को, एग्रीगेटर्स को और एंड यूज़र को फ़ायदा हो। प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होगा, बट जितना फ़ायदा उन लोगों को होगा बिटवीन द लाइन, एंड यूज़र को नहीं होगा, और जो प्रोड्यूसर है उसको नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनीज क्या करती है, जब वो बड़े होना चाहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा अलग सोचते हैं। इसलिए वो B2C और B2B का कॉन्सेप्ट आता है। इसीलिए लोग मार्केटिंग के बंदे हायर करते हैं जिनको 1-1 लाख रुपए सैलरी मिलती है कि तू डिजिटल प्लेटफॉर्म भी देख मेरा, एसईओज भी एडसेंस कर, वगैरह और ये साथों साथ सब। तू मेरा BTL एक्टिविटी भी चला, जिसके अंदर क्या आता है कि रोड शोज आते हैं, बैनर्स लगते हैं, होर्डिंग्स जी, लगती है आपके प्रोडक्ट की, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट होती है न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, या कोई अदर लोकल आपका न्यूज़ चैनल हो या मार्केटिंग मीडिया जी टूल हो सर। उसके अंदर। तो वो सारी BTL एक्टिविटीज़ में आता है, बट वो कॉस्ट, इट्स अ वेरी कॉस्टली आइटम जो आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जी सर। इसीलिए हमें वो हाथरस मेलाज, एग्जीबिशन, MSME के रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं वो सब होते हैं। बट उससे आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, मेरी नेक्स्ट स्लाइड में वो है कि आप कैसे बिना पैसा आपकी मार्केटिंग को, जो रियल क्रक्स जो है इस प्रेजेंटेशन का, वो मैं अब लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे आपको उस तरफ, कि आप बिना पैसा कैसे अपनी ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। बिना पैसे। बिना पैसा, बिना खर्चे कुछ भी, आपको उल्टा पैसा मिलेगा ब्रांडिंग के लिए, कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी टेक्निक्स है, वो आपको कोई एग्रीगेटर नहीं बताएगा, ना कोई इंस्टीट्यूट आपको बताएगा, क्योंकि वो एकेडमिकली इन्वेंट नहीं होती, वो आपको मार्केट इन्वेंट करके देता है। जो आपके जैसे बेंचमार्कर्स हैं इंडस्ट्री के, जिन्होंने बेंचमार्क सेट किया है, वो लोग ये रोड मैप डेवलप करते हैं और उनसे सीखना पड़ता है। तो मैं, आप लोग जब मार्केट में हैं, तो मैं जान, आप लोग किस किस को फॉलो करते हैं, कौन से ऐसा ब्रांड है जिस कमोडिटी में आप लोग हैं, प्लेस्ड है मार्केट में, आप किसको फॉलो करते हैं? एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी। कोई रोल। कोई रोल मॉडल नहीं है? एमवे को, एमवे तो इट्स लाइक गॉन केस। कोई तो रोल मॉडल होगा आपका, या आपने किसी को देखा होगा जब आप काफी एग्जीबिशन में जाते हैं, वहां जी पे जी सर। पार्टिसिपेट करते हैं, आपके कंपिटिटर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे उनका वहाँ पे एक बिजनेस साइज लोकलिटी कितना एक बड़ा है। लड़की, हमारे वहाँ पे लोकलिटी में एक लड़की थी, मैंने उसको देख के मतलब फॉलो किया। अच्छा, नहीं, उसके लिए आपको अपना, वही मैंने बोला, क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड जी व्हेन यू सर। स्टार्ट इवॉल्विंग द बिजनेस। तो इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट के लिए आपको एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा, एक कंपटीशन में खुद को लाना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रो करोगे, जी सर। तब आपको आइडियाज मिलेंगे। तो माय नेक्स्ट जर्नी इज ऑन द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग टूल्स, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स यूज होते हैं, कैसे ऑफलाइन प्रमोशन मोड्स होते हैं या मेथड्स होती है, इफेक्टिव पैकेजिंग एंड स्टोरी लाइन कैसे काम करती है, और यूथ का इन्वॉल्वमेंट और कंसिस्टेंसी कैसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक ऐसी चीज़ पे आपको डिस्कस करूंगा जो लो कॉस्ट मार्केटिंग एंड ऑफलाइन स्ट्रेटेजीज आपके लिए बिल्ड करके देगी, जिसमें आपको पैसा नहीं खर्चना है। खर्चना है तो बहुत मिनिमम होता है, वो भी स्टार्टिंग में नहीं, जब आप स्केल करते हो अपने बिजनेस को, जब आपकी लीड जनरेशन शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को लीड जनरेशन का तो फंडा पता है ना? लीड लीड जनरेशन। जनरेशन का, कैसे लीड जनरेट की जाती है मार्केट में, कहाँ से अपने कस्टमर्स को खींचना है, उसका डेटाबेस मैनेज करना है, तो वो आपको पता ही है ना। तो मैं उसमें डीप में नहीं जाता, तो मैं सिर्फ आपको ले जाता हूँ कि ये लो कॉस्ट और जो ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज होती है वो कैसे इवॉल्व होती है इस बिजनेस प्रोसेस में। वो स्टार्ट होता है डिजिटल कीवर्ड से। किसको कीवर्ड्स के बारे में नॉलेज है यहाँ पे?
What are keywords? ज़्यादातर यूज़ होता है when we type on Google or type on ज़्यादातर most सर्च करते हैं जल्दी आता है ज़हन में भी आता है इंसान के माइंड में पहले ही आता है नहीं, आप लोग करेक्ट हो, बट टेक्निकली करेक्ट नहीं हो, एकेडमिकली करेक्ट हो। एकेडमिक और टेक्निकल एंड फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। सर हम खुद एकेडमिक हैं तो हम एकेडमिक से ही जुड़े हैं अब हम बिजनेस में आए हैं सर ये तो ऐसी नहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं, when हमारी गलत फहमी है जब हम ये सोचते हैं कि एसईओज वो काम करते हैं। एसईओज हमारा काम करते हैं। हम लोग जब बड़े होते हैं तब एसईओज को अपॉइंट करते हैं, बट जब हम छोटे होते हैं I said keywords we use, in search engine optimization, wherein we can, rank our products for this. बट उसके लिए कुछ तो कीवर्ड आप बनाएंगे ना प्रोडक्ट को लेके। So those are the keywords that we type at a time. For example, if you are searching for any, कोई so we simply what we can put better, put thermal, so at that pattern, those are. अच्छा, आप में से कौन लोग ज्यादा कर ऑनलाइन शॉपिंग करता है? गर्ल्स एवरीवन। Yeah. ठीक है, तो कौन सी वेबसाइट आप ज्यादा कर यूज करते हैं? मिंत्रा या अमेजन? मिंत्रा, अमेजोन, मीशो अमेजोन है, से ज्यादा करते हैं, फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट करते हैं। आपको पता है फ्लिपकार्ट और अमेजन है और मिंत्रा है, उनका सर्च इंजन जो है इट इज हाईली एडवांस। जी उनका जी एआई जो है वो हाईली ट्रेंड है। आपके जो मतलब आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आप जो सर्च करते हैं वो रिकॉग्नाइज करता है और आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी एड्स मिलती रहेगी जी जी सर, फोन पे। बिल्कुल सर। एड्स भी उन्हीं के आते हैं वगैरह सारे के मतलब तो वो कैसे फंक्शन करती है जो हम सर्च उसका? करते हैं ना मतलब फोन में, वो रिपीटली एआई की जनरेशन की वजह बट वो से। कैसे हो पाता है? इतना लार्ज लार्ज ऑडियंस है, उनके पास कस्टमर बेस देखेंगे तो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है। सर जो ये They use voice रीड करता है कैसे? और जो भी हम क्या है कॉन्टैक्ट वो चीज? व्हाट आर दोस कीवर्ड्स? कीवर्ड्स। सो वो कीवर्ड्स क्या होता है? आपके ब्रांडिंग को लेके काम करता है। आज अमेजन के आप जब भी गूगल करके अमेजन डालेंगे ना तो कीवर्ड्स डालिएगा उसमें, कभी गूगल पे ट्राई कीजिएगा, तो अमेजन के आपको कम से कम 1.5 लाख कीवर्ड के वर्ड्स मिलेंगे जी आपको, सर। अलग अलग फ्रेजेस में, लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम, कहीं ना कहीं से अमेजन का नाम उसमें आएगा। क्लोथ्स अमेजन, हैशटैग अमेजन, आप डालिए स्पेक्स अमेजन, कैटेगरी कोई भी डालिए प्रोडक्ट की, अमेजन आएगा वहाँ पे। तो आपको फ्री के अंदर अगर वो चीज़ करनी है तो आपको उसके लिए कीवर्ड समझना पड़ेगा आपके ब्रांड का। आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट किस किस का पेज है अपने बिजनेस को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर? तीन ही लोगों का है? 4? और कोई सोशल मीडिया पे जिसने अपना पेज बनाया प्रोडक्ट का? 4 ही लोग हैं? तो बना लीजिए बहुत काम आएगा, ये सेशन के बाद ही बना लीजिएगा। यू विल सी ए डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस। बस ये है कि हम उसको कैसे प्लेस करें, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। तो कीवर्ड्स क्या होता है कि जनरली हम अपने प्रोडक्ट जो होती है या हमारा जो ब्रांड होता है या हम जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन होता है उसको कीवर्ड को हम बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं। हमें कोई डिजिटल इंजीनियर की या एसईओ की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। आप अपने ब्रांड को एक बार पेपर पे लिख लीजिए, उसके कीवर्ड्स लिख लीजिए, कौन कस्टमर्स है आपके, उसके आउटरीच लिख लीजिए। अगर आपको मैं एग्जांपल समझा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक एग्जांपल पकड़ते हैं, आप में से किसी का एक बिजनेस मुझे बताइए, कौन कौन सा बिजनेस कर रहा है? अच्छा, सेफ्रॉन पकड़ते हैं, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो। सेफ्रॉन में मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि अच्छा ये ईरानी है, ये कश्मीरी सेफ्रॉन है, दोनों में compete करते कौन सा बेटर है। तो हमेशा क्या होता है, सेफ्रॉन डालते हैं जैसे ही तो वो ईरानी आ जाता है, काफ़ी बार हमें पता नहीं लगता, तो इसलिए आपके प्रोडक्ट पंच नहीं कर पाते। ईरानी बिजनेसमैन बहुत स्मार्ट है, बहुत डिजिटलाइज क्रिएटिविटी बनाते हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। आप जब सेफ्रॉन डालेंगे ना तो आपको सेफ्रॉन का, जैसे गूगल पे कीवर्ड डालिए, आपको सेफ्रॉन का सिर्फ केसर नहीं दिखेगा, सेफ्रॉन नहीं दिखेगा, उसके अलावा बहुत सारा सेफ्रॉन दिखेगा। तो आपको सेफ्रॉन के साथ आपको अपना नाम टैग करना है, सेफ्रॉन के साथ आपको कश्मीर टैग करना है, सेफ्रॉन के साथ आपका जो कंपनी का नाम है वो टैग वो करना है, आपके टैग ब्रांड का करना है। नाम टैग करना है, सेफ्रॉन के साथ आपको खीर रखनी है, सेफ्रॉन के साथ आपको दही रखना है,
सेफ्रॉन के साथ आपको मिल्क मेड का कोई प्रोडक्ट आप जो घर में बनाते हैं, स्वीट डिश बनाते हैं, वो रखनी है, या हलवा रखना है कोई भी तरह का, आप डालिए, आप खुद से बनाइए। और ऐसे बहुत सारे फ्री टूल्स हैं ऑनलाइन जो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप उसको यूज कीजिए, चालू कीजिए काम उस पर, आप देखिए आपको महीने भर में रिजल्ट अलग ही होगा। यू विल बी हैविंग योर ओन पोटेंशियल, यू विल बिकम योर ओन एसईओ एंड यू विल लाइक इट। आप देखिए आपको उसके बेसिस पे आपका एनालिटिक्स बनेगा, वहां से आपको रिपोर्ट मिलेगी, डैशबोर्ड मिलेगा कि कितने कस्टमर्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को लेके आपके वहां पे लैंड किए, आपकी साइट पे, आपके पेज पे कितने लैंड किए, वो एनालिटिक मिलेगा आपको। उससे आप सोच सकते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी कि अच्छा मैं इतने ऑडियंस तक पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ, तो मेरे पास अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब उनको कन्वर्ट करने के लिए या उसको लीड को कन्वर्ट करने के लिए, ताकि मेरे कस्टमर बने। तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका कीवर्ड आपको डालना है आपके बिजनेस के साथ। आप लोगों को समझ आ रहा है कुछ? जी जी सर। क्या आया समझ? कीवर्ड बना। कीवर्ड्स आपके बिजनेस को लेके, आपके ब्रांड्स को लेके, आपके प्रोडक्ट्स को लेके। बहुत जरूरी। उसके बाद जब आपके पास उसका टारगेट ऑडियंस आ जाए तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं डिजिटल साइट्स पे, उसको आपको कीवर्ड के थ्रू, हैशटैग के थ्रू, या उसको मॉडरेट करके आपको डालना है। और देखिए आपका पेज का साइट, मतलब इट वुड बी लैंडिंग टू 1000 ऑफ मिलियन, इवन यूएस कस्टमर्स आपको मिलेंगे। मैं एक बहुत निश सा एग्जांपल देता हूँ, मैं वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अ कश्मीरी अगेन, उसका जो बिजनेस है वो बहुत यूनिक है। कारपेट सब लोग बनाते हैं, कारपेट। ठीक है, हैंड वूवन थिंग्स सब लोग बनाते हैं, इधर बहुत चलता है, कार्विंग वगैरह सब कुछ बहुत है, हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे बहुत है। बट उसका फोकस एरिया वो नहीं है। उसका फोकस एरिया ये है कि अगर मैं उसको बोलूँ मुझे कारपेट इस स्टाइल में चाहिए, इस डिज़ाइन में चाहिए, तेरे पास है क्या, तू बना सकता है? बोले हाँ ठीक है, 1 महीना लगेगा, ये कॉस्ट है। कस्टमाइज करता है। आप देखिए उसने अपनी जो, मतलब दिन के कम से कम जो कालीन, हम लोग यहाँ पे लोग बड़े कालीन वाले हैं, लोग हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो करोड़ों का टर्नओवर करती है, बट वो बंदा अपने सिर्फ 10 कालीन बेचता है और वो टर्नओवर पे पहुंच जाता है। तो उसके पास ऐसा क्या स्पेसिफिक चीज़ है, वो क्या करता है, उसके पास मतलब बाहर से लोग क्यों उसको रीच करते हैं ग्लोबली? यूएस से उसका सबसे बड़ा मार्केट है, यूरोप सबसे बड़ा मार्केट है, कैसे? बैठा तो इधर ही है, काम तो उन्हीं से करवा रहा है जो लोग दूसरों के लिए भी काम करते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज आइडिया, दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड थर्ड इज द प्रमोशन थ्रू लो कॉस्ट कीवर्ड्स जो उसने बिल्ड किए हुए हैं। आज जब मैं उसे इंटरेक्ट कर रहा था तो मुझे पता लगा उसने कम से कम 1.5 लाख कीवर्ड्स सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को लेके बनाया है। उसके प्रोडक्ट का साइकिल साइज या साइकिल कितना है पता है? इस 30 डेज साइकिल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स के पास सिर्फ 17 है, 17 प्रोडक्ट्स के लिए 1.5 लाख कीवर्ड उसने बना दिए। ही इज अर्निंग, हम सबसे ज्यादा कमा रहा है। सो दिस इज व्हाट यू आई थिंक आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगी ये बात आज तक, तो ये आप करिए, स्टार्ट कीजिए। दिस इज that's why I have written at the bottom that begin your online social media page across all platforms। जितने भी प्लेटफॉर्म्स अपना पेज बनाइए, रोज कीवर्ड डालिए, रोज कुछ ना कुछ अंदर प्रमोट कीजिए अपने प्रोडक्ट को, यू विल सी लॉट ऑफ पीपल इंक्वायरिंग अबाउट यू। और लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस भी आपके पास आएंगे जो इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं, आपके पास मार्केट का एक्सप्लोरेशन हो जाएगा बहुत। इट्स अ वेरी गुड टूल। जैसे मैंने आपको बताया हाउ दिस कीवर्ड्स वर्क एंड हाउ दे आर यूज्ड। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उनका एआई एनालिटिकल बहुत पावरफुल है। तो जनरल स्ट्रैटेजी जो उन लोगों की रहती है प्लेटफॉर्म की, तो रिसर्च, जैसे मैं आपको बताया गूगल कीवर्ड प्लानर है, आप गूगल कीजिए, डालिए उसमें गूगल प्लानर, आपको कीवर्ड्स की लिस्ट मिलेगी, आप अपने प्रोडक्ट के साथ उसको लॉन्च कर दीजिए, अकाउंट खोलिए और चालू कर दीजिए। ऐसे ही उबर सजेस्ट है, ऐसे ही आंसर द पब्लिक है। देयर आर फ्री टूल्स, कोई पैसा नहीं भरना अकाउंट खोलने के लिए। आगे जाके कोई वो भी नहीं है कि अगर आप मान लो कि आप डाउन स्ट्रीम में गए तो अगर आपको उसके लिए पैसा भरना होगा, आपको लार्ज ऑडियंस या कोई अदर टूल लेना है, तो वो भी नहीं है उसमें। आप बस कीवर्ड बनाइए जितने बन सकते हैं, फिर जब बिजनेस स्केल हो जाए तब आप उसका नेक्स्ट फेज पे जाइए, वहाँ पे कुछ $100 या $200 के आसपास का उसका कंटेक्स्ट आता है, वो आप बाई कीजिए एंड देन फिर वो मास ऑडियंस तक जाइए, रीच कीजिए। सो दिस आर द स्टेजेस। सो जो आज की डेट में आप रोज गूगल करेंगे तो गूगल पे आपको इतना एक बेंचमार्क दिखेगा कि ट्रेंडिंग क्या है, आज चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। इंस्टा पे जाएंगे या ट्विटर पे जाएंगे, क्या ट्रेंड चल रहा है, वो आपको ऊपर दिखेगा ट्रेंडिंग।
उस ट्रेंडिंग कीवर्ड से आप अपना प्रोडक्ट को मैच कर दीजिए, डाल दीजिए, गूगल कीवर्ड प्लानर में डाल दीजिए। जितने भी गूगल पे सर्च करने वाले अगर दिन के अंदर वो मिल गए, वो कोई ना कोई तो वो देखेगा जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, उसमें आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा, आपकी रैंकिंग ऊपर। आपको कुछ नहीं करना है, कोई पैसा नहीं खर्चा करना है, लोग ही करेंगे। तो ये सारे जो टूल्स है ना, ये सारे टूल्स हम जब ये सब चीज़ें आई मार्केट में, तब ये जितने भी हमारे आइडियल हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए 2-3 के, उन लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी। ना ही उन्होंने कोई मार्केटिंग की बड़ी टीम हायर की है, ना सेल्स की टीम हायर की है। उन्होंने 10-15 जनों ने खुद मिलके सीखा, मुझ जैसे इंसान ने किसी ने उनको आइडिया दिया और उन्होंने ये चीज़ कर ली। आज वो लीड कर रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी वो स्टार्ट कीजिए। कमिंग बैक टू कीवर्ड स्ट्रेटेजी फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, दैट इज डिफाइन योर निश। आपका प्रोडक्ट क्या है, निश है तो डिफाइन कीजिए उसको। एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक स्किन केयर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, फिटनेस कोचिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बनाइए कीवर्ड्स उसके। एक एग्जाम्पल है, आप अपना भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे सेफ्रन का मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक सेफ्रन डालिए, सेफ्रन विद आइस डालिए, या सेफ्रन विद खीर डालिए, सेफ्रन विद हलवा डालिए, अलग अलग हलवे के नाम डाल के सेफ्रन डाल दीजिए, आपका प्रोडक्ट वैसे ही चलेगा। जो सेफ्रन सर्च करेगा, या अगर वो खीर भी सर्च करेगा, हलवा भी सर्च करेगा, उसको वहाँ पे आपका सेफ्रन दिखेगा। तो दिस आर द एलिमेंट्स विच वर्क्स इन द इंडस्ट्री। जो आपको ये जो छोटे छोटे पैरामीटर्स है ना, वो कोई आपको सिखाएगा नहीं, ना कोई बताएगा। तो दैट इज व्हाट द प्रैक्टिकल अप्रोच आई एम ट्राइंग टू गिव यू इन दिस प्रेजेंटेशन, दिस सेशन। सेकेंड इज टारगेट ऑडियंस। आप 15-18 औरतें हैं या 15-18 लोग हैं अपने बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, आप अपना ये आइडिया जो है सबसे शेयर कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए। आज आपका बिजनेस अलग है, इनका अलग है, इनका सेफ्रन का बिजनेस है, बट हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी आर्म्स लेंथ मैच करती हो। आप कोलैबोरेट कीजिए, आप अपने कीवर्ड्स कोलैबोरेट करिए आपस में, आप देखिए वो ग्रुप बनाइए, एंड यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। आपका जो सिस्टम है वो खुद ब खुद ग्रो करेगा, और आपको नीड लगेगी लोगों की, तब आपके पास स्केलेबिलिटी आएगी, आपके पास लोग आएंगे, आप एम्पावर हो जाओगे और आप लोगों को हायर कर पाओगे। सो योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, नॉट फ्रॉम टुडे। सेकेंड इज अबाउट कोर कीवर्ड्स। जैसे मैंने बताया आपको 5-6 लेंथ वाले कीवर्ड्स हैं, आप अपने नोटिंग कर लीजिए। उसके बाद लॉन्ग कीवर्ड्स हैं, आप लॉन्ग कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। देन अगेन सोशल मीडिया के काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो रेगुलर प्रैक्टिस में आते हैं या ट्रेंडिंग हैं, आप उसको ले सकते हैं। हैशटैग की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, हैशटैग्स लगा के सब कुछ। कंटेंट के जो कीवर्ड्स हैं, आप जो कंटेंट बना रहे हैं अपने ऐड के लिए, उसके अंदर आप कीवर्ड्स लगाइए अपने, और उसके थ्रू प्रमोट कीजिए। पॉज करें, अजान हो रहा है। रिफ्रेशमेंट भी आप लोग कर लीजिए तो। मैंने नहीं मुझे आई नहीं किए तुम्हारा इधर आजा शागिर में आजा एक बात बोल सब हट गया
नहीं पूछिए ना, मैं उसी के लिए यहाँ पे हूँ, आप पूछिए मुझे, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल के अंदर। हाँ सर, नई नई चीज में लार्ज कॉर्पोरेट्स में काम किया हूँ, बोर्ड लेवल पे काम करता हूँ। तो जो बोर्ड में लार्ज कॉर्पोरेट अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं वो शायद आप लोग तक पहुँचती नहीं है, और इसी वजह से वो नॉलेज जो है कहीं ना कहीं वो गैप खड़ा करती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, और इसलिए वो प्रमोट नहीं हो पाती है, आप जी सर। स्टिक हो जाते हैं उतने ही सेगमेंट में। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हम लोग जब बोर्ड में बैठते हैं तो हम क्या स्ट्रैटेजी ड्रॉ करते हैं जिससे प्रोडक्ट या उसकी लाइफ साइकिल बढ़े, बंदे जो बिजनेसमैन है या ओनर्स हैं वो लोग कुछ कमाए उसके अंदर। तो वो सब टूल्स एंड टेक्निक्स आप लोग तक पहुंचती नहीं है, इसीलिए कई क्या बार क्या होता है स्टार्टअप जो है ना वो चलता तो बहुत अच्छा है, फिर बाद में हंगअप हो जाता है, तो उसका फोकस एरिया खत्म हो जाता है। तो मैं एक दो एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ आपको कि वो जो निश प्लेयर्स हैं वो अपना फोकस को मेंटेन करते हैं और अपने मार्केट को कोलैबोरेट करते हैं, इसीलिए वो ग्रो करते हैं। जैसे आप स्टार्टअप फ्लिप ये आई एम टू से पेटीएम और उन सब के एग्जांपल देखिए, जोमेटो के, स्विगी के, बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छा खासा वेंचर कैपिटल आ गया उनके पास, आईपीओ कर लिया, बट अब उनके पास अब स्ट्रैटेजी नहीं है आगे बढ़ने की। नहीं नहीं, मैं बाद में तो मैं अब आपको एक नए टॉपिक पे ले जा रहा हूँ, वो आपने शायद एकेडमिक्स में भी नहीं पढ़ा होगा, और ये टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा फोकस दीजिएगा इसमें, थोड़ा सा फोकस, ये आपको आपके आगे बिजनेस में हेल्प करेगा, ताकि आप जब ग्रो करें तब आपके पास लोग आएंगे जो स्किल्ड लोग होंगे, जो इस चीज़ को प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर प्रमोट करते हैं या उस पर काम करते हैं, वो आपको बेवकूफ़ ना बना सके। तो ये चीज़ उसके लिए है। अब हम जब स्टार्ट करते हैं, दो कॉन्सेप्ट के ऊपर है, एक है रेड ओशन एंड ब्लू ओशन। किसी ने सुना है कॉन्सेप्ट, रेड ओशन और ब्लू ओशन। सुना है आपने रेड ओशन ब्लू ओशन कैसे काम करता है? So, there's a huge competition between skin vendors. You have to take them from so there's a huge, right? Where the blue ocean is लो competition. so it's just where we create, some market will be provided. So it's not there is no competition at present, but going towards, we want significant market. नहीं, आप यू आर राइट, यू आर वेरी मच राइट, बट उसमें जो मेन क्रक्स है इन दोनों के बीच में वो आप छोड़ दिए। आपने बहुत अच्छा एकेडमिकली आप कहेंगे तो आपने बहुत अच्छा पकड़ा उसको, बट जो मेन उसका ओवरव्यू पॉइंट है वो आपने छोड़ दिया। ये कॉन्सेप्ट क्यों बना मार्केट के अंदर? ये कॉन्सेप्ट इसलिए बना क्योंकि, सॉरी, बोलो बोलिए बोलिए, आप बोलिए प्लीज, बताइए बताइए प्लीज। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ, एकेडमिकली कॉन्सेप्ट अलग होते हैं और जब आप मार्केट में काम करते हैं वो कॉन्सेप्ट अलग तरह से काम करता है। Right, तो रेड ओशन इसलिए क्योंकि वो ट्रेडिशनल अप्रोच पे काम करता है, right. आप And अपनी साइकिल को small ट्रेडिशनली चलाते हैं, ठीक है? right. आप अभी जो काम कर रहे हैं, जितने भी आपके एग्रीगेटर्स हैं उनसे मिलते हैं, करते हैं, वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। बट आप जब अपने एग्रीगेटर को बोलेंगे कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो यूनिक है, इट्स ए यूनिक प्रोडक्ट, और उसकी डिमांड मार्केट अलग है, मैं तेरे को नहीं बेच सकता, अगर तेरे को चाहिए तो मेरे को इस प्राइस में ले। तो बोलेंगे क्या प्रोडक्ट क्या है, आप बताइए उसमें क्या स्पेसिफिक है। तो आप बोलेंगे यार मैंने एक ऑयल बनाया है, ठीक है? वो ऑयल है ना वो क्या करता है, नेचुरल हीलिंग करता है स्किन केयर की, ठीक है? और वो जो ऑयल है ना उसका यूएसपी ये है कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी रिलैक्स करता है, अगर आप सर में लगा देंगे, आप लगा के देखो तो क्या होगा, इसकी यूएसपी हो गई, यूनिकनेस आ गई। आप उस प्रोडक्ट का उससे बोलोगे भैया ये तू 10 रुपए में ट्रेडिशनल बिक रहा है, इसका मैं तेरे को 120 रुपए लूंगा, वही 10 रुपए का प्रोडक्ट आप 120 में बेचें, दैट इज वॉट इट इज ब्लू ओशन। और उसका एक राइट एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो मेरे यहाँ पे एक डेयरी इंडस्ट्री की कलेक्टिव वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, उन्होंने जो A2 का मिल्क बनाया, वो मिल्क तो सेम मिल्क है जो ऑलरेडी मिलता है मार्केट में, जो 70-80 रुपए मिल रहा है, उसने 120 से लेकर 80 में बेचा। दैट इज अ करेक्टिव एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ओशन। तो अब इसको हम कैसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें या इम्प्लाई करें, ये सोचने वाली चीज है।
आप सब नए स्टार्टअप हो, आपने कभी सोचा होगा कि मैं अपना यूएसपी कुछ डिफाइन करूं प्रोडक्ट का, उसके बाद ही मैं उसको मार्केट में लॉन्च करूं। ठीक है, कोई स्पेसिफिकेशंस होगी आपके प्रोडक्ट की, कोई क्वालिटी स्पेसिफिकेशन होगी, आपने वो सोची कभी या इनोवेट की है? तो इनोवेट किए तो आप उसको ब्लू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू लॉन्च कीजिए। Right. और कौन से मीडियम लेने हैं, कौन से टूल्स हमें लेने हैं, वो टूल्स है फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप बिजनेस, इंस्टाग्राम, या एनी ऑफ द मीडियम ऑफ द सोशल मीडिया। आप उसका कंटेंट क्रिएट, आपको लगता है मेरे लिए कंटेंट कौन क्रिएट करेगा, मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स कौन बना के देगा, कौन मेरे लिए वीडियोस बना के देगा, मुझे किसी इन्फ्लुएंस पास जाना पड़ेगा, वो पैसे मांगेगा, तो कैसे करूंगा मैं वो? तो वो हर्डल हटाने के लिए क्या है कि एआई के टूल्स हैं। एआई वो ब्लू ओशन का स्ट्रेटेजी में आऊंगा उसके ऊपर, कैसे आप अपना खुद का मार्केट क्रिएट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल, दैट जो रेड ओशन मार्केट का कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा आप ब्लू ओशन में कैसे अपना मार्केट क्रिएट कर सकते हो, कैसे अपनी प्रोडक्ट का बेंचमार्किंग क्रिएट कर सकते हो। तो वो जो मैं बताया आपको कि नहीं नहीं, अब मैं लेता रहूंगा, थोड़ा गर्म है। तो थोड़ा ये जो टूल्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, एआई टूल्स जैसे कैनवा है, फोटोर है, सिलेरियो है, स्नैपा है, अमीनोट है, वो आपके वीडियोस भी बना देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपका प्रोडक्ट का एक फोटो खींचना है, अपना अकाउंट खोलिए, फोटो खींचिए, प्रोडक्ट का डालिए, अंदर लिखिए उसमें कि मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए, जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आपने कीवर्ड बनाए गूगल के ऊपर, उसी तरह का कंटेंट उससे मैच करिए। मैच करके इसका आप स्टोरी टेलिंग डाल दीजिए कि मुझे वीडियो बना दे एनिमेटेड, या मुझे लाइव कोई भी ऐसा वीडियो बना के दे दे। तो वो आपको वीडियो पूरा कंटेंट के साथ, मतलब आप किसी ऑडियो के साथ, विजुअल्स के साथ आपको मिल जाएगा। आपको कोई चीज कहीं पे किसी को देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया खर्चा है आपको किसी को, सिर्फ हाँ 1 से 1.5 घंटा आपको देना है बस। डेली 1 घंटा दीजिए अपने प्रोडक्ट को, बनाइए एआई टूल के थ्रू, एनालिटिक्स आपको रिप्लाई भी देगा उसमें कि कितने ऑडियंस अब रीच हुई आपके पेजेस के ऊपर, कितने टच डाउन हुए, कितने क्लिक्स हुए हैं, वो सब भी आपको मिलता रहेगा। आप एनालिसिस कीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो फ्री टूल्स हैं, यूज कीजिए। सिमिलरली आपको ब्लू ओशन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स में समझा देता हूँ। आप सबका एक प्रोडक्ट है, उसमें एक स्पेसिफिकेशन तो होती है, हर प्रोडक्ट की एक यूनिकनेस होती है, USP. यूएसपी होती है। आज सेफ्रन है, सेफ्रन तो क्या है कि आप देखेंगे सेफ्रन का कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट नहीं है, सेफ्रन सेफ्रन है, कलेक्टिवली एक जगह से मिला, बस क्वालिटी के डिफरेंस है, ग्रेड्स अलग है। हम्म तो हमने मिलेट को लाया और उसमें थोड़ा सा काम करके हमारा टेस्ट करता है, उसको थोड़ा सा कुछ हमने करके उसमें ऐड किया, तो कुछ वेजिटेबल्स थी जो हमने ऐड की, बिल्कुल फ्राई करके उसमें डाल, तो वो बड़ा अच्छा चला हमारे साथ, जो हमारा अभी आ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा एक मैं आप लोगों को इनके रियल पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जाता हूँ, एग्जांपल कलेक्टिवली देखते हैं उसको। आपने बताया कि आपने उसमें वैल्यू एडिशन की, प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन है, आपने कुछ स्पेसिफिकेशंस उसके अंदर दया आपके प्रोडक्ट को बना दिया, एक यूनिकनेस आ गई, दैट इज योर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। वो कब बनेगी ब्लू ओशन? जब आप अपने ऑडियंस तक उसको उस तरीके से पहुंचाओगे। Naval way. अभी आप वही ट्रेडिशनल चेन फॉलो करोगे तो क्या होगा, रेड ओशन में प्लेस्ड हो जाएगा, आपको उसका रेट नहीं मिलेगा। आप बात समझे, आपको compete करना है किससे? ऐसे तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो करते हैं, कॉमनली करते हैं। तो आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस कब आएगी, जब आप उस सेफ्रॉन को ये बताओगे कि ये सेफ्रॉन है ना, उसके अंदर नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी साइंटिफिक प्रॉपर्टीज, आप उसको एलोबरेट कीजिए और अपना कीवर्ड बनाइए और पंच लाइन मार्केट डालिए मार्केट में। Also go target. एब्सोल्युटली, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि उसकी प्रॉपर्टीज है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी इससे। तो आप ये इसको स्टार्ट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए आपके बिजनेसेस में। कहीं पे भी मैं अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे दे के जाऊंगा आप लोगों को, कहीं पे भी लगता है कि आपको कहीं पे कुछ एडेड नीड की जरूरत है, जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ इनिशिएटिंग दिस कैंपेन, या एक प्रोडक्ट का कैंपेन को अगर आपको इनिशिएट करना है तो मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली आई विल डू दैट, आई विल बी वेरी मच हैप्पी। तो कमिंग बैक टू दिस, तो ये जो मैंने एआई टूल्स एंड मीडियम आपको दिए हैं, आप घर जाके आपके लिए एक एक्टिविटी भी, एक्सरसाइज भी, आप एक बार उसको खोलिएगा जरूर, लॉग इन कीजिए।
हम में से सब पढ़े लिखे हैं, सबको कंप्यूटर चलाना आता है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा था जिनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, जो पढ़े लिखे नहीं थे। जब वो लोग ये सब चीज़ कर सकते तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप लोग घर जाइए, शाम को एक्टिविटी कीजिए, ये लॉगिन कीजिए, एक पेज बनाइए अपना, ट्राई कीजिए उसको। पहली बार में फेल होगा हो सकता है, पर दूसरी तीसरी बार में कलेक्टिवली आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट वो आपकी यूनिकनेस आपको सोचनी है उससे पहले, जब आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कि वो यूनिकनेस क्या है आपके प्रोडक्ट की, वो आपको डिफाइन करनी है, क्योंकि आप प्रोडक्ट के ओनर हैं। सबसे अच्छी चीज है पढ़ के ही इंसान बिजनेस अच्छा कर सकता है। Not necessary. Not necessary. एक अच्छा कर सकता नहीं है। नहीं, वो जरूर, देखिए मैं There वही is no बताऊँ, age for in business. आपके पास टेक्निकल नो हाउ है, बट आपके पास एक विजन होना चाहिए बिजनेस को करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेटेजीज कौन सी मार्केट में इवॉल्व हो रही है, कौन सा काम करेगा। आज का मार्केट इतना फास्ट है, इतना एडवांस है, जो आज आप प्रोडक्ट डाल रहे हो ना, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी 6 महीने पहले, 7 महीने पहले किसी और ने डाल दिया है मार्केट में। तो आपको उनके साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। आपका ट्रेडिशनल मेथड चलाइए आप अलग से साइड में, क्योंकि ट्रेडिशनल है, वो चलता रहेगा। उसी से आपके काफी सारे की बेनिफिट्स है, बिकॉज यू माइट बी इंक्यूबेटर्स। तो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर आपको वो सपोर्ट की जरूरी है। सब लोग स्टार्टअप से हाँ, तो वो सब आपको नेसेसिटी है, जरूरी है वो सब चीजें। आगे बढ़े, मैंने कुछ प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा, यहाँ पे मैंने लिंक्स रखी है। आप काफ़ी सारी वीडियोस है, जो उसको प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, आप कैसे पेज ओपन कर सकते हैं, कैसे कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स लेने हैं आपके बिजनेस को लेके, कैसे आप उसको मार्केट कैंपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मार्केटिंग ऑनलाइन कैंपेन्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब लिंक भी दी है। तो मैं आपको मोटा मतलब ब्रीफली समझा रहा हूँ, बिकॉज टाइम की भी कंस्ट्रेंट है। तो मैं आपको ये रन थ्रू इसलिए फास्ट जा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक और पीछे सेशन 2 है, बट आप ये सब रिफर कर सकते हैं। सो देयर आर 8 फोकस एरियाज, उसमें 8 फोकस एरिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के। और वो प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने बताया कैसे ग्रुप क्रिएट करना है। ग्रुप के लिए भी कोई पैसा नहीं देना है आपको। ग्रुप बनाइए, उसमें कंटेंट डालिए और आपका मैसेजेस डालते रहिए। ऑटोमेटिक प्रमोशन है, उसके एनालिटिक्स भी बैकएंड के ऊपर। जब आप व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट आप में से सबका होगा Yes. ऑलमोस्ट, Yes. ठीक है, आप उसमें जाइए, उसमें आप कंटेंट क्रिएटिविटी में जाइए। अगर वो कुछ आई थिंक सम चार्जेस हैं उसके, बट वो माइनर चार्जेस हैं, आप वो पे कीजिए, वो अकाउंट ओपन कीजिए और उसमें आप ये सब चीज़ें प्लेस डाउन कीजिए। आप देखिए डेली कितने लोगों को टच करेगा ग्रुप्स में, मल्टीपल ग्रुप्स में, चाहे आपके उसमें फ़ोन में ऐड है या नहीं है नंबर्स, बट कलेक्टिवली सब जगह वो प्लेस करेगा। आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट का इंजन जो सर्च इंजन है उसको वहाँ पे डिफाइन करना रहेगा, वो इट विल गेट देयर। सेकेंड है क्लाइंट जर्नी, कि हमारी जर्नी क्या है। हमें पहले ये सोचना पड़ेगा, जब हम इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं या स्टार्टअप पीरियड में होते हैं, तो हमें ये समझना है कि हमारी क्लाइंट की जर्नी क्या है। क्या हम उनको बेसिक रीच दे सकते हैं, यानी हमारा प्रोडक्ट जो है उनको सेटिस्फाई कर सकता है क्वालिटी वाइज, अश्योरेंस वाइज, या कोलेबरेटिवली अगर हम किसी मिल के अपने मल्टीपल प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म बनाएं और उसको उन क्लाइंट जर्नी तक ले जाए, कि भाई वो क्लाइंट मेरे पास वापस कितनी बार आया, कब तक आया, वो एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। वो एनालिसिस आपको सिर्फ मिल पाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म से। Digital platform. आप कलेक्टिवली, आप जाएंगे किसी भी इवेंट में, Analytics. पार्टिसिपेट कीजिए, आपके पास 10 कार्ड्स होंगे, विजिटिंग कार्ड्स लोगों के, आप उसके बेस पे फिर आप कॉल करेंगे, रीच करेंगे, बट हो सकता है वो कन्वर्ट ना हो लीड, या उसको सिर्फ एक कोल्ड कॉल हो। तो बट आपके पास वो डेटा नहीं होगा कि मैंने किस किस को कॉल किया। आप लिख तो लेंगे, बट उसके पीछे एनालिसिस नहीं होगी, बट ये आपको एनालिसिस करके देगा। सो दैट इज द टूल वाई पीपल एंड लार्जर कंपनीज आर मूविंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। Right. सिमिलरली ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कितनी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्री टूल्स बताए हैं आपको, आप उसको अपना कंटेंट बनाइए और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कीजिए। लीड नेचर मैंने आपको बताया कैसे लीड जनरेट होता है, कि आपके पास पेज पे कितने लोग उस आपके कंटेंट को देखे हैं, उससे लीड कितनी कन्वर्ट हुई, उसकी एनालिसिस भी आपके पास आएगी। आप उनको टच डाउन कर सकते हैं, वो आपके पेज में जाके आपकी इंक्वायरी बिल्ड कर सकते हैं, आप इंक्वायर कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। सिमिलरली आप दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, दूसरी कंपनीज है, वो जैसे कि सबसे ज़्यादा चलने वाला अपने यहाँ पे जो आपके इसमें जैसे अभी देखा किसान किसान मेला. किसान, वो अभी आज के डेट में मार्केट में लीड कर रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में। तो दैट दे विल कम एंड रीच यू डायरेक्टली, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पास ही आएंगे। फिर उसी तरह से काफ़ी सारे ऑफलाइन प्रमोशनल टूल्स हैं, जिसके अंदर मेजरली तो आप सब लोग उसके अंदर कनेक्ट है ही, जिसमें मेलाज है, हाथरस हैं, फेयर्स है, एग्जीबिशंस हैं, वर्ड टू माउथ प्रमोशंस होता है, सिंपल पोस्टर्स या बैनर्स आप लगा लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग होती है उन सब की, और जनरली क्या ग्रुपिंग एंड लेबलिंग के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ।
तो वो जनरली ऑफलाइन रहता है जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है। अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल वाला है कॉन्सेप्ट। मैं चाहता था कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊं, बट मैं आपको थोड़ा क्विक रन करता हूं ताकि आपको उसका ब्रीफ मिल जाए। सोशल मीडिया की लिस्टिंग, सोशल मीडिया का एनालिटिक्स एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये तीनों कोर है, फंडामेंटल्स। जब तक आप अपने बिजनेस को इन तीनों को समझेंगे नहीं, अपने बिजनेस को इन तीनों के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपका स्ट्रैटेजी जो है, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, वो कोलाइड हो जाएगा। इट विल नॉट वर्क फॉर द लॉन्ग रन। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया का लिस्टिंग, जैसे मैं आपको समझाया, कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को डिफाइन कीजिए, अपने प्रोडक्ट से लिंक कीजिए मार्केट में, उसको लॉन्च कीजिए। लॉन्च करने के बाद आप फीडबैक का वेट कीजिए, कितने प्रमोट हुए हैं, कितने लोग आपके पेज पे लैंड किए हैं, उसमें से फिर लीड कितनी आपको मिली है, उसके कन्वर्ट हुई है, वो एनालिसिस आपको बताएगा कितना कन्वर्ट हुआ है। कन्वर्ट का आपका रेशियो देखिए कि कितने वो कस्टमर्स हैं वो बैक टू बैक मेरे पास आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। सिमिलरली उसका मैनेजमेंट अब कैसे आपको करना है, आपके पास एक प्लानर होना चाहिए सोशल मीडिया का, कि मुझे कौन सा कंटेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, किस टाइम पे, किस जगह पे, और क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, उससे मैच करके मुझे उसको लॉन्च करना है। वो ये 10 पॉइंट उसी के रिलेटेड है, बट मैं उसको आपको स्लोली ग्रेजुअली, मतलब फास्ट थोड़ा जा रहा हूँ उसको लेकर। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कैलेंडर बनाया कि आप 30 डेज का एक मीडिया कैलेंडर बनाइए। फेसबुक से स्टार्ट कीजिए अपना पेज क्रिएट करके। उसी तरह से कीवर्ड आप जो आपने गूगल पे लिए हैं पेज पे, उसी तरह से फेसबुक के आप कीवर्ड बनाइए, और उसकी तरह लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उसी तरह से आप उसको चैनलाइज करते जाइए। एवरी डे आपका कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट पे कंटेंट होना चाहिए दिन में। देन यू विल सी द ग्रेजुअल चेंज इन योर बिजनेस। Consistency should be there. आपको ट्रेडिशनल लाइन, जैसे मैंने बताया आपको, रेड ओशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप उससे हट जाओगे और ब्लू ओशन की तरफ चले जाओगे। Mind रेड ओशन तो चलता ही रहेगा आपका, क्योंकि वो ट्रेडिशनली आपको चलना है, आपको उसका सहारे की जरूरत है। सो बट यहाँ से आपको जो पेस मिलेगी वो एक नेक्स्ट लेवल मिलेगी। सो इंडिपेंडेंटली यू विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग योर ओन बिजनेस। तो आप लोग एक बार इसका किसी को फोटो ना लीजिए, आप उस तरह से अपना कैलेंडर बनाइए, उसको प्रमोशन करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने बताया कीवर्ड्स के बारे में कि कैसे उसने बिजनेस को सक्सेस किया है, तो कौन से ऐसा बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा सक्सेस हुआ है। उसका एक केस एग्जांपल है लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ शुरू आपकी तरह जर्नी किया था उसने, छोटी सी बॉम्बे बेस्ड 4 या 7 8 औरतें थी, उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया 7. उससे, किसी से छोटा सा लोन ले लिया, मशीनरी उससे ली, या गिफ्ट दी उनको, और जो बिजनेस उन्होंने टेक ओवर किया जिस बंदे से पापड़ बनाने का, आज की डेट में वो ही बंदे ने उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन करके दी है। इसीलिए आज की डेट में वो इतना ज़्यादा मतलब स्केल्ड अप हो गए। सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी आया है, मतलब पास्ट 10-12 साल से वो अपलिफ्ट हुआ है, बट उससे पहले उन्होंने कैसे कर लिया, ट्रेडिशनल नेटवर्क। बट जब डिजिटल मीडिया आया उसके बाद जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ, इट वाज, मतलब आप यू कैन नॉट कम्पीट। आज की डेट में डिजिटल मीडिया के थ्रू जो प्रमोशन कैंपेन जो लिज्जत पापड़ के प्रोडक्ट से चलते हैं, आप गूगल कीजिए, आपको दिन के अंदर कम से कम ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जहाँ पे लिज्जत पापड़ डिफाइंड होगा, डिफाइंड एवरी डे। रिलायंस अपना जितना प्रोडक्शन प्रमोशन नहीं करता है डिजिटली, उतना लिज्जत पापड़ का प्रमोशन हो रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। चाहे आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, आप स्विगी पे जाइए, इंस्टामार्ट पे जाइए, जेप्टो पे जाइए, वहाँ पे पापड़ डालिए तो सबसे पहले आपको लिज्जत पापड़ आएगा। और लिज्जत पापड़ कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, वही कीवर्ड सर्च इंजन से ही आपको आ रहा है। तो ये सब चीज़ें इवॉल्व हो रही है और वो लीड कर रही है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इसका यही है कि उसने जो अपनी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी जो फोकस की है, वो निश को पहले फोकस की, ट्रस्ट बिल्ड किया, एंड देन डिजिटल मार्केटिंग पे ग्रेजुअली शिफ्ट हुए। सिमिलरली सेवा, इंदु बेन खाखरा वाला इंडिविजुअल, जैसे मैंने बताया कि उन लोगों का भी जर्नी है। अच्छा, सेवा के बारे में कौन कौन जाता है यहाँ पे? सेवा इज एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय वुमन। कम से कम 1.3 बिलियन वुमन उनके साथ जुड़े हुए हैं आज की डेट में। लार्जेस्ट नेटवर्क, आप लोगों को पता ही। दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया। यू गो एंड स्क्रॉल, यू विल सी द पावर दैट की जो कलेक्टिव लीडरशिप जो सेवा ने दी है एम्प्लॉयमेंट के लिए औरतों को, स्पेसिफिकली औरतों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। सी इट्स फैंटास्टिक, इट्स ए वेरी गुड जर्नी। आप उसको पढ़िए, उसका रोल बिजनेस मॉडल समझिए और आप ट्राई कीजिए अपने आप में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगेन डिजिटल मार्केटिंग वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
सो विल डिस्कस ऑन की चैलेंजेस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज. जो चैलेंजेस है, सबसे पहले अगर मैं वुमन डिप्राइव्ड एसएचजीज एंड एफयूज की बात करूं, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि मेल डोमिनेशन है हर जगह. आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है बट मेल डोमिनेटेड है इंडस्ट्री, इसलिए आपको ज़्यादा कर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. दूसरा सबसे बड़ा मीथ ये है कि फिनेंशियल कैपिटल मार्केट्स में कि अगर आप लेडी हैं आपको जल्दी फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी. तो सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट का ही है. तो अगर आपको उसको बैरियर को हटाना है तो क्या करना है, आपको उन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना पड़ेगा जैसे सेवा है, जो कलेक्टिवली इस तरह का कैंपेन करती है जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए औरतों को वो लोन्स देती है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर. तो यू कैन गो एंड स्कीक देयर कैपिटल एडवांटेज फ्रॉम देयर. कैपिटल सब्सिडीज मिलती है गवर्नमेंट से, प्लस मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज की जो मैंने बात की कैसे उसको बेरे को तोड़ना है. तो मैंने आपको बताया कि अडेप्ट अब ब्लू एंड रेड ओशन के बीच में आप अपना एक मार्केट का पूरा पूलिंग बना दीजिए एंड पूलिंग के थ्रू यू रन योर प्रोडक्ट्स. सो दिस वुड बी एन एग्रीगेटर टू योर बिजनेस. दिस विल वर्क एज एन एग्रीगेटर. डिजिटल मीडिया एंड ब्रांडिंग सॉल्यूशंस जो मैंने आपको बताया अभी. सेकेंड है कि आप जितना भी यूथ को इवॉल्व करेंगे आपके बिजनेस के अंदर, उसका एक ट्रांजिशन स्टेज अलग आएगा. जितना हो सके आप यूथ को इन्वॉल्व कीजिए आपके मैसेज के अंदर, स्टोरी टेलिंग में, आपके ब्रांडिंग प्रमोशंस में, इमोशंस में. आप उनको इमोशंस दिखाइए कि आपका ब्रांड क्या कहना चाहता है, प्रोडक्ट क्या कहना चाहता है. एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लास्टली. सो आई कम टू द अनदर स्लाइड दैट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें निश पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. आप सब छोटे हैं, आपका पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी बहुत एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि इसमें ट्रायल एरर स्टार्टिंग में आप कर सकोगे, जैसे ग्रो किया फिर ट्रायल एरर के चांसेस नहीं है. तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा. अगर आपने ट्रायल एरर करना शुरू कर दिया, आपने काफ़ी सारा मतलब ट्रायल करते गए एरर्स आती गई, तो आपका प्रोडक्ट कभी सक्सेस नहीं होगा मार्केट के अंदर. यू विल नॉट कम्पीट. देन अगेन गवर्नमेंट सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है. आप लोग जेम में कितने लोग रजिस्टर्ड है? Not registered. एमएसएमई में कितने लोग रजिस्टर्ड है? Yes. एमएसएमई में है. उद्यम किसके पास है? सबके पास है. वेरी गुड. तो उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स हैं, प्रमोशंस हैं. और अगर आप लोग लगता है कि डोमेस्टिकली मैं ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को यूएसपी नहीं देना चाहता, आई वांट टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल मार्केट, तो एमएसएमई की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, काफ़ी पीएलआई स्कीम्स हैं जिसमें आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के लिए थ्रू आपको बाहर भेजते हैं. आप अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे लॉन्च करते हैं और वो वहाँ से आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मिलना शुरू हो जाता है. तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इनिशियली, बिकॉज ये जो फेज है इसी में आप जितना भी अपना ट्रायल एरर कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आप कीजिए. यही जर्नी है जहाँ पे आपको आपको प्रोडक्ट को एक्सेल करने मिलेगी. फाइनेंशियल क्लस्टर डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया पीएमजीईपी एंड श्रुफ्टी करके है जो आपको क्रेडिट एक्सेस, इजी क्रेडिट एक्सेस देती है. यू डोंट हैव टू गो विद लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड एनीथिंग. यू विल गेट इजी क्रेडिट एक्सेस फॉर दैट फॉर द स्टार्टअप्स. एंड लाइक इंक्यूबेशन, आप जो भी इंक्यूबेटर हैं उनके आपके वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं उसको आपको इजीली आपको अवेल हो जाते हैं उसमें. डिजिटल मीडिया एंड फॉर्मुलेशन, जैसे मैं बताया उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड ई कॉमर्स, आप स्टार्ट कीजिए उनके साथ बिल्ड करना रिलेशन. अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम. आप अपने प्रोडक्ट को रीच दीजिए, उनको बताइए क्या प्रोडक्ट है, कंटेंट की डिलीवरी दीजिए उनको थ्रू एसईओज एंड कीवर्ड. प्रैक्टिकल पे बुक्स, ये कुछ केपीआईज हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं कि आप वो केपीआईज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके बिजनेस के अंदर एटलीस्ट इनिशियली आपको थोड़ा बूस्ट मिलना शुरू हो जाएगा विदाउट एनी कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच. इसमें आपको कोई ज़्यादा अगर खर्चा नहीं, एक्सपेंसेस नहीं होंगे. तो उसमें एक सेल्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जिसके मैंने आपको बताया कि कैसे आप ट्रैक करेंगे अपना सेल्स को, लीड को, जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने लोग वापस आपके पास आए, नहीं आए, क्यों नहीं आए, रीजंस आपको पता चलेंगे. कैंपेन्स का आपको पता है कौन सा कैंपेन सक्सेस हुआ, कौन सा फेल हुआ, वो कैंपेन्स आपको पता लग जाएगा. प्रॉफिटेबिलिटी लगेगी आपको पता कि कौन सी मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका ग्रॉस मार्जिन कितना आ रहा है. आप अगर कम प्रोडक्शन कर रहे हैं बट आपकी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही उसके बाद भी, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के आउटपुट पे आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट में कम करना पड़ेगा. तब जाके आपकी सस्टेनेबिलिटी लॉन्गर टाइम पे बढ़ेगी. वो कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना हो सका उतना डिजिटल मार्केटिंग का अप्रोच आपको लेना पड़ेगा. सिमिलरली है डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स में कि आपकी रीच एंगेजमेंट थ्रू कीवर्ड्स, एसईओ जो आप मैंने बताया आपको कैसे कर सकते हैं. आपके कंटेंट है, 30 डेज का कैलेंडर बनाइए, उसको आप डेली प्रमोट कीजिए, उसके एनालिसिस कीजिए बैकएंड के ऊपर कि कहाँ पे क्या गैप आई, गैप का आप रास्ता ढूंढिए कैसे उसको हम लोग और ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और रीच में कन्वर्ट कर सकते हैं लीड को. देन कस्टमर एंड द चैलेंज इनसाइट, कि अब चैनल मिक्स एनालिसिस ये होता है कि आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रोडक्ट डाल दिया,
प्रोडक्ट डालने के बाद आपको पता ही नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है, क्यों लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको है ना एक इनसाइट बनानी पड़ेगी, आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी कि भाई मैंने इतनी जगह पे मैंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, इतनी जगह पे इतनी स्कीम्स में मैं गया, इतने फेयर्स मैंने अटेंड किए, इतनी जगह मैंने प्रमोशन कैंपेन्स चलाए, बट लीड जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो वो इनसाइट्स आपको डेवलप करते रहनी पड़ेगी, वो जो आपके मंथली कैलेंडर है उसके थ्रू ही आपको मिलेगी वो इनसाइट। तो यू विल बिल्ड योर ओन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, यू विल सी हाउ कलेक्टिवली यू गेटिंग रिजल्ट्स। अगेन काफ़ी सारी गवर्नमेंट के और एमएसएमई की स्कीम्स है जो ब्रांडिंग और उसको सपोर्ट करती है, मैंने डिटेल में दे रखा है, आप उसका भी स्नैप ले सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपने रजिस्टर किया है जेम में तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पीएमजीईपी के, श्रुफ्टी के, एमएसएमई की काफ़ी सारी मार्केटिंग एंड असिस्टेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम्स मिलती है, जिसमें मैंने बताया इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली यू कैन पार्टिसिपेट। तो आप अगर आपके पास उद्यम है तो यू कैन इजीली गेट रजिस्टर्ड विद द एमएसएमई प्लेटफॉर्म अंडर दिस पीएमईजीपी प्रोग्राम। एंड ईएमडी प्रोग्राम्स है जैसे आज है, तो वो सारे चलते ही रहते हैं। तो यू हैव स्किल बिल्डिंग एंड नॉलेज डेवलपमेंट ऑल्सो। दिस इज द की टेक अवे। ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है या पूरा सेशन है, इसके की टेक अवेज ये हैं कि हम लोग कैसे अपनी स्ट्रैटेजिक और मार्केटिंग ब्रांडिंग को एक्सप्लोर करें, कैसे हमारे चैलेंजेस हैं जो डेली लाइफ में आते हैं प्रैक्टिकली, उसको कैसे ओवरकम करें थ्रू इनिशिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, उसकी मार्केटिंग कैंपेन्स और उसका फोकस स्ट्रैटेजी के हम निश मार्केट में हैं, B2C को कवर करना है या B2B को कवर करना है। तो वो आपको अभी से डेवलप करना पड़ेगा ताकि ट्रायल एरर के चांसेस जो है फर्दर जाके ना हो। लीवरेज अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मैंने बताया आपको, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, उसको कैसे लीवरेज कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर जगह हर चीज़ में मिलेगी एज ए स्टार्टअप, हर जगह आपको अपना कस्टमर मिलेगा, हर लेवल पे आपको कस्टमर मिलेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो कस्टमर आपका लॉन्ग टर्म हो, रिटेन हो। तो आपको हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लीवरेज करते रहना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, आपका रोल मॉडल बनाइए प्लीज़। पहले आप लोग जब तक अपना रोल मॉडल नहीं डिफाइन करेंगे कि मुझे इस पर्टिकुलरली बिजनेस प्लान को लेके या बिजनेस मैट्रिक्स को लेके वी हैव टू गो। तो उस तरह से आप उसको कर सकते हैं। रोल मॉडल बनाइए आप सबसे पहले, देखिए वो कैसे काम करता है मार्केट के अंदर, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, उसको स्टडी कीजिए। अभी आपके पास टाइम है, एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर आपके पास जब बिजनेस आएगा आप टाइम एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे कंपटीशन को। तो अभी आप वो स्ट्रैटेजी डिफाइन कर रहे हो, उसके बेस पे अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन कीजिए। अब थोड़ा सा Q&A सेशन है एंड वोट ऑफ थैंक्स फॉर ऑल। तो किसी को कोई क्वेश्चंस है, मैं थोड़ा फास्ट हो गया लास्ट में, आई डोंट नो, मतलब टाइम की कमी से, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो मैं एड्रेस कर सकूं? Sir, if you talk about the paid performance marketing, right? In digital marketing, we talk about paid performance marketing. So, what according to you suits best? For example, if I have I am a first generation entrepreneur, right? So, in my first company, I want to do some performance marketing. I want to spend something on it, right? So, what according to you works? Should I set it for daily basis? Should I set it for weekly, monthly? What according to you works best for See, a new startup? I would really suggest for a startup, don't spend anything on a single money on marketing. जो एसेंशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको आप रीच कीजिए इन टर्म्स ऑफ लोकल, आपको असिस्टेंस मिल रहा है, Right. इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, आप वो सब चैनलाइज। जस्ट क्लोजिंग द फर्स्ट सेशन, सो आप उसको ले सकते हैं, मतलब बट आप इनिशियली अपने पॉकेट से 1 रुपया भी खर्च मत कीजिएगा प्लीज़। आप जितना हो सके एज ए स्टार्टअप इंक्यूबेटर, जो आपको असिस्टेंस मिल रही है गवर्नमेंट से, उसके थ्रू आप जाइए, वो चैनल को आप पकड़िए एज ए स्टार्टअप, बिकॉज वहाँ पे एक्सपीरियंस आपको मिलेगा मार्केट का, लोकल मार्केट में आपको कैसे पेनिट्रेट करना है अपने प्रोडक्ट्स को। बट उसके साथ साथ आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी ड्रिवन करनी है जो आपको बताएगी कि मेरा रेड ओशन का जो गैप्स है वो मैं ब्लू ओशन के थ्रू कैसे कंपेंसेट कर सकता हूँ। तो वो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा थ्रू सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूजिंग फ्री सर्विसेज। Okay, done. What after that? The second stage. सेकंड स्टेज ये है कि जब आपको लगेगा जब मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच है Right. वो मुझे एक लेवल तक ही बिजनेस दे रहा है, हाँ। उससे ग्रोथ नहीं आ रही है, जब आपकी डिजिटल मार्केटिंग या आपकी खुद की दूसरी स्ट्रेटेजीज है या ओपन मार्केट में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रहा है, तब जाके फिर आप अपना पेड सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म का लेना शुरू कीजिए। उससे आपका रीच बढ़ेगा, एनालिसिस बढ़ेगी,
आपका कंटेंट पावर बढ़ेगा, Right. आप एक्सेल कर पाओगे बिजनेस को, एंड देन स्लोली ग्रेजुअली एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, Right. हायर पीपल टू market your products locally in the even your sales team also. Thank you. Anything else? शू क्या क्वेश्चन करिए जल्दी हुमन थोड़ा wrap up. मेरा एक सेशन 2 भी था, मैं वो नहीं कर पाया, बट मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूंगा. ये स्पेसिफिकली मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे Boardroom strategist. बनाया हुआ है. मतलब काफ़ी सारी औरतें हैं आज की डेट में, या नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेसिफिकली औरतों में मैं देख रहा हूँ आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है. तो फ्रॉम ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर दे हैव बिकम द रोल मॉडल इन द बोर्ड मीटिंग्स. यानी एक छोटी सी कंपनी चलाने वाले आज मतलब मल्टीपल बिलियंस का कंपनी रन करते हैं, और वो बोर्ड को मतलब हम जैसे लोगों को मतलब हम जैसे लोगों को दे गिव दे हायर अस एंड दे पे. Right. So that is what the role model classifies. So that was the second session to begin with, that how a woman entrepreneur to a boardroom strategist. Right. So these are like value chain that we explained in the first topic, कि value chain कैसे create करते हैं, उसके कैसे gaps है, उसकी क्या analysis है, उसके बाद business के क्या benefits है उसके through. Then what evolves in the future. जैसे हमने बताया, आज हम जो मार्केटिंग कैंपेन प्लान कर रहे हैं वो आज के लिए प्लान नहीं कर रहे. आज हम बिजनेस स्ट्रेटजी जो प्लान कर रहे हैं वो आज के लिए नहीं कर रहे, हमें फ्यूचर के लिए प्लान करना है. Right. क्योंकि फ्यूचर में वो इनोवेशंस या प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो कैसी होगी, क्योंकि कंपटीशन भी होगा साथ में जब हम ग्रो करेंगे. तो इसलिए हमें अपने फ्यूचर को भी हमें समझना है. इसलिए वो वैल्यू चेन का प्रोसेस जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में समझाया, वो वैल्यू चेन का प्रोसेस वहाँ पे इम्प्लाई करता है. सिमिलरली एक सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा बिजनेस में आता है, दैट इज योर कोर कैपिटल. Core capital is the major thing that is always required after you extend your incubation part, Right. when you are self driven. तो वो कैसे आप कहाँ से सीख कर पाओगे माइक्रो कैपिटल जो है, उसमें भी आपको काफ़ी सारी असिस्टेंस मिलती है गवर्नमेंट से भी, और उसके अलावा आप भी काफ़ी सारा फ्री क्रेडिट एक्सेस कर सकते हैं. तो काफ़ी सारी बैंक रिलेटेड सिस्टम्स है जो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कि जैसे आज गवर्नमेंट ने MSME प्लेटफॉर्म के अंदर एक डिजिटल क्रेडिट सिस्टम बाहर निकाला हुआ है, जिसमें ये होता है कि आप जैसे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, या निश सेगमेंट को फोकस करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स को क्रेडिट में सेल नहीं करना पड़ता. वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कीजिए, बैंक से आपके इनवॉइस को परचेज करेगा टू सम इंटरेस्ट जो बहुत मिनिमम होता है, जो 7 to 8% के आसपास लेंडिंग रेट रहता है. हो सकता है अगर आपका ब्रांड, आपका बैलेंस शीट, आपका P&L स्टेटमेंट अच्छा इम्पैक्टफुल है, प्रॉफिटेबल है, तो आपको उससे भी ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे वो अपना डिस्काउंट, और वो भी इंटरेस्ट आपको बहुत मिनिमम रहेगा फॉर 30 डेज, क्योंकि 45 डेज का MSME का साइकिल है. तो यूज़ दोज प्लेटफॉर्म फॉर इजी क्रेडिट. आपको कोई बैंक से पैसा या लोन उठाने में, आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है. तो यूज दोज पोर्टल फॉर योर एक्सेल इन द बिजनेस. देन देयर इज अगेन कोलैबोरेटिव फाइनेंस सिस्टम, जो मैं सेवा बैंक की बात कर रहा था, कि उन्होंने कैसे कोलैबोरेटिव बनाया, कि उन्होंने क्या किया कि मल्टीपल ग्रुप ऑफ वुमेन्स हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेसेस लिए, उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग किया, इंस्टीट्यूट को दिया, सेवा को, सेवा ने उसका एक कॉर्पस बनाया, फंड बनाया, और फंड उन्होंने उसी पे लगाया, उस पर इंटरेस्ट लेना शुरू किया औरतों से, और वो धीरे धीरे करके वो इतना एनविसैग हो गया, इतना बड़ा हो गया वो, कि उसका खुद का फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हो गया. आज की डेट में जितने भी सेवा है, उसने खुद का अपना बैंक शुरू कर दिया है, उसके काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर जो वो खुद सेल करती है, उसका खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो औरतें अपना मार्केट करती हैं. उसके अलावा भी काफ़ी सारी जगह है जो गवर्नमेंट है, वो उनको प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए बाहर ले जाते हैं, ब्राज़ील ले जाते हैं, US ले जाते हैं, हर जगह ले जाते हैं. और सिमिलरली अगर आपकी मैं बात करूँ तो हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है NIF इंडिया का. कितने लोग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को जानते हैं? NIF इंडिया को नहीं जानते? आप उसका भी प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए. दिस इज स्पेसिफिकली मेंट, गवर्नमेंट ने उसको 10,000 करोड़ का सैंक्शन दिया. यू गो एंड यूज दैट प्लेटफॉर्म, टेक क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम देम अंडर MSME, सो यू विल हैव दैट मच एडवांटेजेस. फिर टोकनाइज कम्युनिटी सिस्टम है, ये एक नया फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर के लिए है, इन टर्म्स ऑफ आप जैसे इंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं जो मार्केट के अंदर इंक्यूबेटर्स हैं. तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि आपके पास कोई कोलेट्रल नहीं है, बट आप जब एक कोलैबोरेशन में आते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी के पास कुछ असेट्स होती है, उस असेट को टोकनाइज करते हैं, टोकनाइज करके आपको लार्ज कैपिटल ड्रॉ करते हैं, आपके बिजनेस पे वो कैपिटल लगाते हैं.
एंड दे हैव एन एग्जिट स्ट्रेटेजी थ्रू IPO, तो आपके बिजनेस को वही ग्रो कर देंगे। आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट को सही पोजीशन करना है, सही मार्केट तक और कंज्यूमर तक पहुंचाना है, और आपकी प्रोडक्शन की और आपकी क्वालिटी को आपको मेजर करना है। सो दोज आर द टूल्स, फाइनेंशियली दे विल हेल्प यू अ लॉट। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिजिटल बैंकिंग का, C2FO, जिसमें मैंने बताया कि कैसे वो हनीबी नेटवर्क काम करता है, आपको इनवॉइस पे डिस्काउंटिंग मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यू डोंट गो फॉर एनी बोरोइंग्स। स्मार्ट सब्सिडीज, इंटरनेशनल एड भी आपको काफ़ी सारा मिलता है अगर आपके प्रोडक्ट सही से प्लेस्ड हो जाए मार्केट के अंदर। ECGC, who knows about that? आपके प्रोडक्ट्स को इंश्योर करता है ECGC, किसी को आइडिया है? इंक्यूबेशन के लिए एक स्कीम है स्पेसिफिकली। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में फेल होता है, इट विल बी इंश्योर्ड बाय ECGC, दे विल पे यू। तो आप नया फिर से एक अपना R&D स्टार्ट कर सकते हो, उस पैसे से एक्टिविटी कर सकते हैं, यू कैन गो अगेन बैक, तो यू ऑल्सो कैन हैव ए लिवरेज ऑन इट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में, हम लोग कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फ्यूचर है, कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट्स, जिसमें आप जैसे लोग स्पेसिफिकली बहुत इवॉल्व कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में मैं एक कंपनी को जानता हूँ जो सिर्फ कार्बन क्रेडिट्स को फोकस करती है। इट्स एन एग्रीटेक कंपनी जो टिश्यू कल्चरिंग को और बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर पे काम करती है, इनोवेट करती है प्रोडक्ट्स को। और हम जैसे जो कार्बन इनिशिएटर्स हैं, जो कार्बन को इमर्स करते हैं, उनके पास से हम जाते हैं, उन क्रेडिट लेते हैं, उनको पैसा देते हैं, एंड वो हमको क्रेडिट पास करता है। So you can be one of those aggregators in that particular field. Data monetization, आपके पास जो लीड जनरेशन हुई है, जितना भी प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया है जहाँ पे आपको लीड मिली है, उस डेटा को कलेक्ट कीजिए, अच्छे से रखिए, Conversion. और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जिसकी बात करें, उनको डेटा को बेच दीजिए, यू विल गेट लॉट ऑफ कैपिटल। हाइपर लोकल ब्रांडिंग विद ग्लोबल स्टोरीज, जो मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ किया पहले, कैसे काम करता है। एक परफेक्ट रियल एग्जांपल है मेरे पास, एक लेडी है जिसको मैं रोल मॉडल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस इंस्टीट्यूट के साथ काफ़ी डिटेल में काम किए, काफ़ी प्रोग्राम्स किए उनके लिए स्पेसिफिकली। शी इज़ इलाबेन, आप में से शायद कोई जानता नहीं होगा इलाबेन भट्ट को। शी इज़ द प्रमोटर एंड फाउंडर ऑफ सेवा ट्रस्ट। यस, शी इज़ द लेडी, द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड दिस ट्रस्ट, जिसमें अगर आप उसकी जर्नी देखेंगे फ्रॉम 1972 से 1996 से, कैसे शी हैव सर्व दिस पर्टिकुलर एंटायर इंस्टीट्यूशन, और वो कहाँ से कहाँ उस इंस्टीट्यूट को ले गई। कम से कम मैं आप जैसे आपको बताया मैंने कि 1.3 बिलियन वुमेन्स आर देयर एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, और वो कैसे वो एक एंटरप्राइज सॉल्यूशन वो लेके आ गए मार्केट, जिसमें अपना खुद का बैंकिंग है, कोलैबोरेशन के थ्रू। उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं, आप जैसे छोटे इंक्यूबेटर्स हैं, कोलैबोरेट किए, फंड रेज करके बाद अपना प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली USP बनाया, मार्केटिंग किया, और इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बेचा। सो पूरी एक सोसाइटी, उससे पूरी कम्युनिटी जो है वो अपलिफ्ट हो गई। सो शी इज़ वन ऑफ द रील, आप उसको ज़्यादा कर डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं, वी डोंट हैव टाइम, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको डिटेल में लिखा है, तो यू कैन हैव दैट स्लाइड ऑल्सो, how she has reached this point and why she is the important member of the community in India. Thank you. Q&A session, anybody has any question? दोनों सेशंस को लेकर किसी को आपको पूछना है तो मैंने आपको दोनों सेशन में एक चीज़ दी, एक मार्केटिंग ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। और इस बिटवीन कहीं पे भी आपको लगता है कोई चैलेंज है, इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम मी स्पेसिफिकली, यू कैन रीच मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई कैन बी helpful to you in terms of your branding, collaborations, as well as in financial activity. I'll just brief you about my background. I'm an finance person. I'm not from marketing, but I have lead a lot of marketing activities and campaigns across the large industries like 20 Microns. As at present, I'm serving the group CFO of 20 Microns Limited. It's a listed company. We are into mines and mineral. Apart from that, I had a good journey with the NISA Group, who was into multi businesses like agri commodity, agri technology, hotels and tourism industry, again infrastructure, real estate. So I have come across with all this. I have worked with Government of India on grassroots innovations, and I'm been awarded by the Government of Singapore in 2019 and 21 for giving the value added services for their promotions in terms of logistics and supply chain and financing. So this is a short background of me. I'll share. So anybody, any questions, please, from both the sessions? I'll appreciate if you